Whenever we think of starting a new dental clinic, there's a lot of questions and fear related to the finances of a dental practice. To help answer all those questions, we did an Instagram live with Dr. Ravi Pandey from the Wise Dentist and Dr. Sagar Chaudhary. This is the Instagram live in which they answer all those questions. There are a lot of words of wisdom, tips and suggestions related to starting your dental practice. I'm Dr. Satish Kumar. This is Kaizen Dental. Our aim here is to help dentists succeed. A lot. So we will start with the first question, which we had around 6 to 7 questions we have got. We'll start with those and then we'll take the Instagram live questions. So the first question is minimum amount required to start a practice. What do you think, Dr. Ravi? What is the minimum amount one should have to start? All right. So this answer can vary. It can vary depending upon city to city, depending upon your geographical area. But I think keeping everything into consideration, a good 7 to 10 lakhs would be quite optimum. I mean, this is my personal view. And, I'm sharing this, keeping everybody into consideration that at the beginning, हर कोई बहुत ही 5-star ambience नहीं बना सकते. And I think at the beginning your beginning should be quite humble. I don't think कि आपको initial clinic start करते ही बहुत बड़ा setup या 2 chair 3 chair के साथ start करना चाहिए. Keeping 1 chair into consideration, a somewhat good hygienic presentable clinic, keeping a basic armamentarium, a good quality armamentarium, वो सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो I think good 7 to 10 lakhs और higher side 12 lakhs would be more than enough मेरे हिसाब से. Okay, what's your take on it, Dr. Sagar? सर बिल्कुल सिमिलर. थिंग इज कि मुंबई में जो प्रैक्टिस है, गुड़गांव में जो प्रैक्टिस है, फिर साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, ऑल आर डिफरेंट. अर्बन प्रैक्टिस आर डिफरेंट. बट 5 लाख इज समथिंग 5 to 7 जो एक मिनिमल प्रैक्टिस को, 1 chair प्रैक्टिस को, मॉडरेट प्रैक्टिस को चलाने के लिए चाहिए. तो इतना तो एटलीस्ट चाहिए. बट यही डिफरेंस है. अब आज गुड़गांव में देयर आर सो मेनी पीपल हु कम टू अस फ्रॉम गुड़गांव जो बताते हैं कि गुड़गांव में क्या चल रहा है कि नॉट विद एवरीवन बट विद मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स जो लेविश बन रहे हैं, माइंडसेट ऐसा है कि जो लेविश क्लिनिक होगा वो वहाँ पे सब सही हो रहा होगा. तो वहाँ पे पीपल आर गोइंग और अफ्रीकन, अफगानीज, जो NRIs ये सब आते हैं, उनके साथ मैंने ये तक सुना है कि फुल माउथ रैम में सीधे कॉम्प्रोमेशंस करी और फिर इम्प्रेशन लिया, लैब को भेज दिया, नेक्स्ट डे उनको बुला के उन सब में रूट कनाल्स हो रही हैं. ऐसी भी प्रैक्टिस चल रही है. तो मतलब इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेविश क्लिनिक्स जो गुड़गांव में लोगों के दिमाग में है कि वही खोलेंगे तो तभी क्लिनिक चलेगा. ऐसे भी एरियाज हैं तो वहाँ मजबूरी है लोगों की कि उनको लेविश खोलना है, चाहे उतना बजट हो या ना हो. ऐसे भी एरियाज है. और ऐसे भी एरियाज है जहाँ आप सिग्नेचर प्रैक्टिस डालते हैं और लाइन लगती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेंटिस्ट नहीं है तो मासिव प्रैक्टिस चलती है, मास प्रैक्टिस चलती है. तो इतना तो सर मिनिमम है, एटलीस्ट 5 to 7 lakhs. इतना आपके पास अगर अरेंज हो जाता है आराम से तो ठीक है, वरना लोन की हेल्प से इतना आप अरेंज कर लेंगे तो योर क्लिनिक विल बी सेट. Understood. Dr. Khushbu is trying to join us. We will be taking people on our live once the session is over. हम लोग basic questions complete करेंगे. उसके बाद anyone from the audience wants to join us can join. So Dr. Khushbu, you will have to wait for some time कि हम लोग basic initial discussions complete करें, then you all can join us. ये 5 to 7 आपने बोला, Dr. Sagar, and Ravi you said 10 to 12. How do you basically understand, Dr. Sagar, कि 5 से 7 में क्या क्या आएगा? What is the basic requirement या क्या क्या minimally मिल सकता है basic setup? Question था, what are the basic things? Yes, Dr. Sagar, you can answer it first. Okay. सर द थिंग इज कि बजट को तो हमेशा मैं बोल के चलता हूँ कि 1 लाख एटलीस्ट ऊपर नीचे हो सकता है. ऊपर ही होता है, नीचे तो कभी होता है. 1 लाख एटलीस्ट हो सकता है. डॉक्टर रवि शायद रिजॉइन Yes, करेंगे. ओके, सो 1 लाख एटलीस्ट ऊपर नीचे होता है. मुझे जो लगता है जो इंडियन चेयर्स हैं वो सस्ती हैं, ऐसे 80 to 1 लाख के बीच में आ जाती है. उसके साथ अगर आप आरबीजी लेते हैं, आरबीजी में हमेशा बोलता हूँ कि आप अच्छा ही लीजिए, चेयर भी अच्छी लीजिए, बट चेयर बहुत हाई फाई लेने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में. तो आप एक्सरे अगर अच्छा लेते हैं कोडैक का, जैसे मैं लेता हूँ मोस्टली कोडैक का, तो वही 1.25, 1.30, 1.40 तक
अच्छा आ जाता है। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस स्टार्ट करने के टाइम पे जो जो प्रायोरिटी आपकी है, दैट इज चेयर, कंप्रेसर, एक्सरे मशीन, आरवीजी एंड योर फर्नीचर, मॉडरेट फर्नीचर, और साथ में आपका इंट्रोवल कैमरा, ये जो मॉडरेट चीज़ें आपकी, एपेक्स लोकेटर, एंडो मोटर, ये सारा इसके अंडर 5 to 7 में आ जाता है, एसी वगैरह सब लगा लोगों के। और 10 to 12 में, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, मुंबई में थोड़ा सा शायद चीज़ें थोड़ी हाई लेवल पे जाती हो या एक्सपेंसिव हो, बट 10 to 12 में तो आप ये मान के चलिए कि you'll get बेटर फर्नीचर, बेटर थिंग्स। बट 5 to 7 में मेरे हिसाब से सब कुछ जाता है। 10 to 12 में शायद अपडेट हो जाए, अपग्रेड हो जाए, जो बेटर चीज़ हो जाए। बाकी डॉक्टर अभी ज़्यादा बता पाएंगे कि 10 to 12 तक क्या क्या चीज़ें। डॉक्टर रवि, सागर बोल रहे हैं कि शेयर आएगा प्लस अ गुड आरवीजी मशीन दैट वुड कॉस्ट यू से 1.25 lakhs एंड फर्निशिंग में 1-2 लाख, बेसिक इक्विपमेंट अराउंड 1 लाख, ठीक है। वो इस हिसाब से उन्होंने 6 से 7 लाख पकड़ा है। तो आई वांटेड टू नो 7 से 12 में, मतलब 4-5 लाख कुछ मिलेंगे एक्स्ट्रा, उसमें क्या एडवांटेज है, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द रिक्वायरमेंट? I would like to stretch this that see ultimately ना in life मुझे लगता है कि अगर हम 5 लाख का बजट लेके कोई भी चीज़ के लिए चलेंगे तो वो 6 से 7 जाएगा। अगर हम 10 का लेंगे तो 12 जाएगा। बहुत सारे ओवरहेड्स हैं जो हम कंसिडर नहीं कर पाते। अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उनको ब्रोकरेज देना होता है। अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमको खाली एक बेसिक टैंक भी लगाना होता है, तो 20-30-40,000 bucks बढ़ जाते हैं। हमारे एयर कंडीशन का चार्ज बढ़ जाता है। मैं चाहूंगा कि आपका क्लिनिक कैसा भी हो, आपकी चेयर मॉडरेट हो, लेकिन आपका बोर्ड बहुत अच्छा हो। तो मैं हमेशा स्ट्रेच करता हूँ कि जो लोग हैं ना बजट को कॉम्प्रेस करते हैं, एंड व्हाट दे डू इज जनरली दे डू नॉट स्पेंड मच ऑन देयर मेन बोर्ड, बट आई वुड लाइक टू स्ट्रेच ओवर हियर इज, मेरे हिसाब से बोर्ड पे बहुत अच्छा कॉस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बोर्ड इज योर आपके रिसेप्शनिस्ट या आपके रिसेप्शन तक लोग बाद में आएंगे, पहले आपका बोर्ड देखेंगे। तो आपका बोर्ड भी कैरी करता है मेरे हिसाब से। अगर एक अच्छा बोर्ड बना रहे हो तो 40 से 50 या 60 हजार रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपके क्लिनिक के एक्सटीरियर में लग जाता है। ये सारी चीजें। एंड हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपका बजट कुछ भी हो, बट यू हैव टू पुट समथिंग ऑन योर लिस्ट फॉर मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, सी आई विल सी अ वेरी सिंपल, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मोस्ट ऑफ लोग अपने क्लिनिक का जब इनॉग्रेशन करते हैं तो वो अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को बुलाते हैं। आई थिंक अपार्ट, मैं अलग सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब आप अपनी क्लिनिक का इनॉग्रेशन कर रहे हो, सो इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू मार्केट योर क्लिनिक। अभी क्या होता है, हाउ डू आई से, या मेरा ओपिनियन क्या है, जब आप क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हो तो मैं एक छोटी सी पूजा रखना पसंद करता हूँ जहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स और नियर एंड डियर हो, और वो बहुत ही छोटी सी पूजा होगी जहाँ पे मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। राइट, मतलब मैं एक प्रसाद के नाम पे एक लड्डू दे दूंगा, और अगर मेरे चाहने वाले मेरे फैमिली मेंबर्स हैं तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे। बट मैं अपने पूरे एरिया में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में मैं पैम्फलेट्स बंटवाऊंगा, और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा हर एक दुकान, शॉपकीपर, बिजनेस ऑफिस में जाके कि मैं यहाँ पे क्लिनिक स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपके हमें बेस्ट विशेस चाहिए, और मैं लंच पे आपको इनवाइट कर रहा हूँ। ये अगर आप करोगे, और लंच पे अगर आपके लंच इनॉग्रेशन के लंच पे अगर आप मान के चलोगे कम से कम 100 लोग भी आते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा बजट रखना होगा। आपको इनिशियल पैम्फलेट्स बनाने होंगे, इनिशियल मार्केटिंग में आपको ये सारी चीजें हेल्प करती है। तो आई थिंक ये देखते ही देखते ये बफर 2 से 4 लाख 5 लाख पे भी जा सकता है। एंड जब आपके क्लिनिक पे ये सारे लोग आते हैं तो आपको कुछ उनको चीजें कॉम्प्लीमेंट्री या रिटर्न गिफ्ट जैसा आपको कुछ देना चाहिए, बिकॉज से लाइफ में आप एक ही बार क्लिनिक स्टार्ट, हम चाहेंगे कि आप बार बार स्टार्ट करो, आपके बहुत सारे एवेन्यूज हो, बट जब आपकी पहली शुरुआत होती है और बहुत तगड़ी होती है तो वो छाप छोड़नी चाहिए। जैसे अगर आपके क्लिनिक में इनॉग्रेशन में इतने सारे लोग आ रहे हैं और बढ़िया खाना खा रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, तो आप रिटर्न गिफ्ट भी दीजिए, और एक गिफ्ट में ऐसी चीज दीजिए जो अपने ऑफिस में जाके या अपने घर पे ले जाके कहीं रख पाए, और रखें तो 4 लोग उनको पूछें कि ये आप कहाँ से लेके आए, या आपको ये कहाँ से मिला। सो आई थिंक दीज आर वेरी सॉफ्ट थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग, हमें पता है, बट डेंटिस्ट्री में इन सारी चीजों के ऊपर कोई बात नहीं करता। मैं तो फुल स्ट्रेस करता हूँ इन सारी चीजों में। मैं कहता हूँ कि भाई आपका जो मटेरियल है ना वो 15 दिन बाद आएगा। ये मार्केटिंग में आप खर्चा करोगे, लोग आएंगे, एडवांस बुकिंग करेंगे, वो जो पैसा देंगे ना उससे मटेरियल ऑर्डर कर लेना। सो दिस इज व्हाट आई थिंक।
अंडरस्टूड. सो बेसिकली यू नीड टू हैव अ गुड मार्केटिंग बजट. जो बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं, वो लोग पूरा पैसा सिर्फ क्लिनिकल सेटअप पे डालते हैं. तो मार्केटिंग बजट एक चीज है जो काफी, दैट इज वेयर यू कैन स्पेंड अ लॉट. सो 6 to 7 इज योर बेसिक इन्वेस्टमेंट फॉर सेटअप एंड एवरीथिंग. उसके ऊपर मार्केटिंग बजट अलग सा. दैट्स अमेजिंग. तो डॉक्टर सागर, नाउ यू, हम लोग बात कर रहे हैं 7 लाख 12 लाख. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पैसा आएगा किधर से? नाउ मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, हम लोग क्या करते हैं, वी गो एंड टेक आवर मनी फ्रॉम आवर मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, रिश्तेदारों से उठाते हैं. इमेजिन किसी के पास ये सोर्स नहीं है. आर देयर लोन्स अवेलेबल फॉर डेंटिस्ट? मतलब हाउ कैन समवन हु डज नॉट हैव मनी कलेक्ट एंड सेव मनी एंड स्टार्ट अ प्रैक्टिस? सर वैसे तो डॉक्टर रवि फाइनेंस के बारे में मुझसे बहुत बेटर जानते हैं, बट इतना तो आई नो कि अगर आपको किसी भी बिजनेस में घुसना है ना, तो आपको अपने आप को एटलीस्ट गवर्नमेंट के सामने सही दिखाना पड़ेगा. और अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे पास डेंटिस्ट आते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, यंग जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको इस बात का आइडिया ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज में वो सब सिखाया ही नहीं गया कि आप जब स्टार्ट करेंगे, वो उनको बस ये आइडिया है कि पीछे से फादर मदर दे देंगे और हम स्टार्ट कर देंगे. बट ठीक है, तब भी स्टार्ट करने के बावजूद भी फादर मदर दें, तब भी इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सरकार की नजरों में सही हो. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरें. और ये भी आइडिया नहीं है लोगों को कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर नहीं भरी है उन्होंने, तो माइंड में मतलब क्योंकि हमने कॉमर्स वगैरह वो सब उतना नहीं समझा है, तो अपने डेंटिस्ट्री के सर्कल में ही रहे, तो ये भी लोगों को पता नहीं है. कई लोगों ने तो मुझसे ये तक पूछा है कि सर, जब मेरी अभी उतनी इनकम ही नहीं है, तो इतनी इनकम पे मैं रिटर्न दे दूंगा तो मेरे को बचेगा ही क्या? मतलब ये भी आइडिया नहीं है कॉमन कि इतनी स्लैब में इतना रिटर्न नहीं देना होता. और उसकी जो फी जाती है, जो सीए जाता है, वो बहुत हाई कॉस्ट नहीं लेता है, बहुत नॉर्मल कॉस्ट लेता है. और इससे ये फायदा होता है कि बैंक्स आपको बहुत इजीली लोन देते हैं. और लोन तो सर ऑब्वियसली डॉक्टर्स के लिए तो प्राइवेट बैंक्स मरे जाते हैं लोन देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि प्रोफेशनल पर्सन है और ये डिसेंट पर्सनैलिटी है. दोनों चीजें मैच कर रही हैं उनके उनके पर्सोना के हिसाब से, जिसमें रिटर्न मिल जाएगा वापस. तो उनको पता है वो चीज. बट उस चीज को फिर भी थोड़ा सा बेटर करने के लिए वो ये बोल देते हैं कि आप आईटीआर ले आइए. अब उससे ही मैं देख रहा हूँ, मैंने कई डेंटिस्ट जो परेशान है उनको बोला कि आप लोन के लिए अप्रूव कर लीजिए. तो इतना बोलने पे उनको जब मैंने बोला कि आप आईटीआर भर के चाहिए, तो ये आइडिया भी नहीं हो पा रहा है लोगों को कि आईटीआर 2 साल की एक साथ भरी जा सकती है, अगर नहीं भी भरी गई है तो ऐसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि अब मैं आईटीआर भरूंगा फिर नेक्स्ट, क्योंकि 2 से 3 साल के आईटीआर मांगते हैं बैंक्स. तो माइंड में आता है कि अब मैं अभी भरूंगा, फिर अगले साल भरूंगा, फिर मेरा लोन अप्रूव होगा. ऐसा नहीं है. आप सीए से बोलेंगे, वो आप लास्ट 2 ईयर्स की या लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की आपकी आईटीआर भर देंगे. ठीक है, फाइन वाइन जो भी होगा माइनर उसके साथ भर देंगे, और उसके बाद आप उसको बैंक में दे सकते हैं. एक चीज तो ये, जब ये आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं. और एक और चीज माइंड में क्या होता है कि लोन मतलब वही बॉलीवुड से दिमाग में है कि कुछ कर्जा चढ़ जाएगा और मेरे पास आके लोग गुंडे आ जाएंगे और वो मुझे लोन की रिकवरी के लिए परेशान करेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. डिसेंट प्रोफेशन में आप हैं, आपके लिए लोन के लिए फैसिलिटीज है. प्रधानमंत्री योजना भी है कुछ जो लोन के लिए है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट वाले तो खैर चाहते ही है कि आप लोन लें. तो उसमें क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज गिरवी रखनी है, और जो है जो मतलब आई मीन ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको सिंपली अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखानी है कि ओके, मुझे क्लिनिक खोलना है, मेरी ये डिग्री है, अगर ठीक है, और ये मेरा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, और सब कुछ राइट है मेरी नजर में. और वो भी ऐसा नहीं है कि वो आपकी डिग्री लेके रख लेंगे. आपको उसकी कॉपीज लगा के एक फाइल प्रॉपर तैयार कीजिए, और 2 से 3 बैंक्स में आप जाएंगे तो कोई, वैसे तो सारी अप्रूव करेंगे, मगर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट बैंक से ज्यादा फायदा है. मैं सब गवर्नमेंट बैंक से ही ज्यादातर फाइनेंस कराता हूँ चीजें, क्योंकि एक सेफ्टी इशू रहता है. सेफ्टी इशू इन द सेंस कि करप्ट होने का, या आजकल तो खैर कम हो रहा है ऐसा, बट पहले 10-5 साल में देखा गया है कि बैंक्स के पैसे लेके भाग गए कई कई लोग. बट अब गवर्नमेंट बैंक्स फिर भी मेरे ख्याल से सेफ साइड पे रहते हैं, बंद होने के चांसेस नहीं होते हैं. तो प्लस जो ऑफिशियल्स होते हैं, एक ये चीज बहुत ही फायदेमंद होती है, मार्केटिंग के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, कि मैं जब भी बैंक में गया हूँ और बैंक मैनेजर से सीधे मिला हूँ जाके, तो एक तो वो रिस्पेक्टफुली आपको बिठाते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, और फिर वो आपके पेशेंट बनते हैं. उनसे रिलेटेड जो जूनियर्स हैं वो आपके पेशेंट्स बनते हैं. ठीक है, फिर उनको आप पे और विश्वास आता है, वो आपको और हेल्प करना चाहते हैं. तो मेरे तो क्लिनिक पे कम से कम 3 से 4 प्रीवियस बैंक मैनेजर्स इलाहाबाद बैंक के चल रहे हैं, जिनमें किसी का इम्प्लांट डल रहे हैं, किसी की फैमिली आ रही है, कोई रेफर कर रहा है. तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा लीगली करेक्ट कैसे चलते हैं, सिविल स्कोर क्या होता है,
थोड़ी वो सब चीजें डॉक्टर रवि से सीखें, ठीक है, और फिर उसको मैनेज करके आप बैंक में जाइए, आपको बहुत इजीली। और इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं है आपको लग रहा हो कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट एक बार देख लो तो कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स बहुत हाई इंटरेस्ट ले रहे हैं और गवर्नमेंट बैंक्स कम ले रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि इंटरेस्ट रेट जब शुरू होता है वो चेंज हो सकता है। एक तो वो वाला लोन होता है कि वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो आपसे गवर्नमेंट पूछेगी नहीं, वो बोलेगी अब 10% था कल 11% हो गया। एक ऐसा भी लोन होता है जिसमें आप इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है, आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे लिया है वही चलता रहेगा। तो आप अपना ऑप्शन पूछ सकते हैं कि किस किस टाइप के लोन्स हैं, पर्सनल लोन है, डिग्री के बेस पे मिलेगा या कोई योजना के अंडर मिलेगा, तो और उसमें क्या इंटरेस्ट रेट होगा, कितना मुझे देना पड़ेगा। खुल के बात कीजिए कि सर इतना लोन मुझे चाहिए, 7 लाख चाहिए, आप मुझे जेब से देना पड़ेगा कि जीरो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। सर मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे बताओ कि 6 लाख आपने दिया तो मुझे पर मंथ कितना देना पड़ेगा और कितने साल तक देना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि आपको 10,000 रुपये महीना देना है, बोलो सर आप टाइम बढ़ा दो, 6,000 कर दो इंस्टॉलमेंट, तो वो भी करके देंगे आपको। उनको मतलब है पैसा लेने से, उनका तो टाइम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट मोटा आए तो आप उसको डाल दीजिए। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि तरीका होना चाहिए। इवन आपके पास पैसा है तब भी, क्योंकि अगर आपके पास, मेरे पास 6 लाख रुपए पड़े हैं फिर भी 6 लाख रुपए मैंने लोन से क्यों लिए, क्योंकि अब वो 6 लाख रुपए जब रिकवर हो गए, पेशेंट 2.5 लाख बचा लोन मैंने एक साथ डाल दिया, तो उससे क्या हुआ कि बैंक की नजरों में, गवर्नमेंट की नजरों में मैं वो पर्सन हो गया जो 6-6 लाख का लोन लेकर उतारे जा रहा हूँ। तो मुझे क्रेडिट दे रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए रख लो, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड में देते हैं, क्रेडिट 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए, सर यूज करोगे तो उसमें जो यूज करोगे उसका इंटरेस्ट लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो ऐसे ऑफर्स देते हैं बैंक आपको, प्राइवेट बैंक और अच्छे देते होंगे खैर। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि पैसे रखे भी हैं तो भी आप लोन का और बैंक्स का इस्तेमाल करना सीखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अंडरस्टूड। रवि, व्हाट इज योर ओपिनियन? अगर मेरे पास पैसा है तो लोन लेना चाहिए क्या? आई थिंक अगेन डॉक्टर सागर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज को समराइज किया। अगर कोई बिगिनर है तो आई थिंक उनको काफी इससे ब्रीफ मिल गया होगा। मुझे लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो भी ऑन सेफ एंड लोन ले लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ में थोड़ा टेंशन जरूरी है। यू नो, टेंशन हमें अच्छा इंसान बनाता है। जब आपको महीने का ईएमआई भरना होता है तो आप अपने आपके अंदर ईगो रहता है और आपको पता है कि इस महीने आपका बिजनेस नहीं हुआ है, और कोई चिड़ा सा पेशेंट भी आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो, बिकॉज आपको अपनी ईएमआई का कॉस्ट रिकवर करना होता है। तो ईएमआई मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आई थिंक कि ले लेना चाहिए अगेन, क्योंकि कोई लॉस नहीं है। हमारे पास अगर स्पेयर में पैसे हैं तो हम कहीं भी अगर हम शॉर्ट भी पड़ रहे हैं तो कि हम भर सकते हैं। एंड आई थिंक कि थोड़ा सा हमको कैलकुलेटेड रखता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज पैसा डाल दिया और उसके बाद है ना कोई बजटिंग नहीं होती उनका, और रिकवरी करने का कोई है ना मोटिवेशन नहीं होता इनिशियल में। आई मीन चाह तो रहे हैं बट वो होता नहीं है। तो जब लोन, आई मीन सी आई विल नॉट, मैं यहाँ पे किसी कास्ट या रिलीजन को नहीं लेना चाहूंगा, बट आई थिंक हम, इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री। मेरा एक गुजराती फ्रेंड है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आई मीन इट्स अ रियल स्टोरी। तो जब उसको क्लिनिक डालना था तो उसने बोला कि मेरे पापा के पास पैसा था, बट पापा ने बोला मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, यू नो, तू मेरे दोस्त के पास जा, उससे उधार ले, और उससे उधार लेके तू क्लिनिक डाल। तो एंड दे आर फिल्दी रिच, मतलब अच्छे खासे अमीर घर के लोग हैं। तो वो जाके है ना अपने फादर के फ्रेंड से लोन लेता है, और उसके बाद जब 6-8 महीने बाद उसका क्लिनिक थोड़ा टाइट होने लगा ना, कि वो मतलब ये नहीं पे कर पा रहा है, तो उसके फादर ऐसा वो बताता है, बोलता है मेरे फादर ने मेरे अंकल को बोला कि और टाइट कर इसको और टाइट कर, मतलब पैसा रिकवर कर। सो जब ऐसा पॉइंट आता है, आई सेड क्यों आपके डैड ने ऐसा क्यों किया, तो बोलता है अब मुझे समझ में आया कि डैड ने ऐसा इसलिए किया कि ताकि मुझे रियलाइज हो सके कि व्हेन देयर वुड बी अ पॉइंट वेयर इन आई एम ऑलमोस्ट, मतलब मैं ब्रेक होने के कगार पे आ गया हूँ, तो या तो मैं ना इस पार हो जाऊंगा या उस पार हो जाऊंगा। सो दैट वाज हिज डैड्स टेक्निक कि आपको लोन इसलिए लेना चाहिए, ऑल्दो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, हर किसी के इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सम अप करेंगे तो ले लेना चाहिए। एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अपने मामा चाचा काका वगैरह से लोन न ले तो बेटर है, बिकॉज वो ट्रीटमेंट कराने आ जाएंगे और वैसे ही वो पे नहीं करते, बट उस ट्रीटमेंट के एहसानों तले आप दबे रहोगे तो आपको बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। आई थिंक लोन लेना इज अ गुड आइडिया, बट नॉट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, एज डॉक्टर सागर सेड।
प्लीज आप जाइए बैंक से विधिवत, आप सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, आप अपना एस्टिमेट देंगे चेयर का, आर्मामेंटेरियम का, टोटल एक्सपेंसेस का, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड ऑल दैट सब चल ही रहा है, यू विल गेट लोन वेरी इजीली, बहुत आसानी से मिल जाएगा। Understood. No, I had a friend. He didn't have a rich father or something, but उसने जब लोन उठाया था, जैसे ही उसका लोन उतर गया, मतलब he finished the loan, he used to tell कि लोन खत्म होने के बाद मुझे मोटिवेशन नहीं रहा। तो yes, if loan is a thing which motivates you, you should go ahead and pick up a loan. तीसरा क्वेश्चन है, should we buy a shop if I can afford it, या रेंट लेना चाहिए? डॉक्टर रवि। आई वुड से रेंट करना चाहिए। मेरे पास 4 प्रैक्टिसेस है मुंबई में और सारे के सारे रेंट पे है। बहुत सारे फायदे होते हैं रेंट के। अगर आपके पास ऑलरेडी आपके फैमिली मेंबर के पास या घर वालों के पास पैसा है और वो अच्छे लोकेशन पे अगर आप क्लिनिक ओपन करके एक प्रॉपर्टी दी जा रही है, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बट आई वुड प्रिफर नाउ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हमको पैसे कमा के वो शॉप या वो प्रीमाइसेस परचेस कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ना आंसर डिफर करेगा। इफ यू आर अ पर्सन जो कि एक एवरेज प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो और अपनी लाइफ बहुत शांति सुकून से आप जीना चाहते हो कि भाई हमें ज्यादा झमेला नहीं चाहिए, हमें महीने का 2-5 लाख 10 लाख जो भी आपका एपेटाइट हो, जो आप जनरेट कर पा रहे हो, आप कमा पा रहे हो, तो आप वो आप वो शॉप धीरे 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 कमा के आप वो शॉप खरीद लीजिए। लेकिन इफ यू आर अ पर्सन जहाँ पे आप सेल्फ मेड पर्सन हो या बनना चाह रहे हो और आपको अपने डेंटिस्ट्री को या अपने प्रैक्टिस को या अपने वेंचर को एक्सपांड करना है, तो आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। आई हैव अ वैलिड रीजन। से फॉर एग्जांपल, जिस एरिया में मेरा एक क्लिनिक है, अगर मैं क्लिनिक खरीदूंगा तो उसका प्राइस, प्रॉपर्टी का प्राइस 1 CR है, जस्ट अज्यूम करने के लिए। अगर 1 CR का प्रॉपर्टी मैं खरीदता हूँ और 20 साल के लिए मैं लोन लेता हूँ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हम समझने के लिए, तो अगर समझो 1.5 से 2 लाख रुपए उसका पर मंथ EMI आता है। सो 1.5 से 2 लाख रुपए अगर मैं EMI भरूंगा, उसके ऊपर आएगा मेरे क्लिनिक के एक्सपेंसेस, उसके ऊपर आएगा कि मेरे पास जो पैसे बचेगा, मतलब महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए मुझे कमाने होंगे। अब 2.5 से 3 लाख रुपए मुझे कमाने होंगे। अब मुझे अगर सेकंड सेटअप डालना है तो मेरे पास जरा भी कुछ भी बच नहीं रहा है। मैं ऑलरेडी ड्राइव लिक्विडिटी। कुछ नहीं है। बट जैसे मैंने क्या किया, अगर मुझे सेकंड प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे ओरिएंटेशन था और आई वांटेड टू ग्रो इन लाइफ, आई हैड दैट, वो अंदर होता है ना एक स्पार्क, पागलपन जो भी कह लो, कि भाई कुछ बड़ा करना है। वो अपन देखते हैं ना इनिशियल में कुछ बड़ा करेंगे। सो मैंने प्रॉपर्टी परचेज नहीं किया। इनफैक्ट अगर वो 1 CR का हेडेक न लेके अगर मैं 20 से 25 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करके एक प्रॉपर्टी खड़ी करता हूँ, तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर मैं 25 लाख रुपीस एक प्रीमाइसेस में डाल रहा हूँ, इंटीरियर, आर्मामेंटेरियम, रेंट वेंट जो भी डाल के, तो आई एम गुड एंड आई एम केपेबल कि मैं महीने के 3 से 4 लाख रुपए में वहां से जनरेट कर सकता हूँ। और ऐसे मैं थर्ड प्रीमाइसेस या फोर्थ प्रीमाइसेस पे डाल सकता हूँ। मतलब मेरे पास लिक्विडिटी है। सेकेंड थिंग, अगर आप एक जगह पे क्लिनिक खोलते हो तो आप कुछ रेडियस तक ही सीमित रह जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। मतलब देयर आर हाई चांसेस। मतलब मेरा एक 200 स्क्वायर फीट का एक क्लिनिक हो या 500 का हो या 1000 का हो, अगर आप एक ही जगह पे हो तो आपका रेडियस लिमिटेड है। बट अगर आप 4 डिफरेंट जगह पे हो और अगर आप ग्रो कर पा रहे हो, अगर आप में उतनी कैपेबिलिटी है दैट यू कैन कि आप होनहार हो, आप टीम बना सकते हो या आप एक्सपांड कर सकते हो, तो आपका हॉरिजॉन बढ़ जाएगा। आपका इनकम की जो हम कैपेसिटी कहेंगे या हॉरिजॉन कहेंगे, वो भी बढ़ जाएगी। आपको क्राउड बहुत डाइवर्स मिलेगी और इसमें रिस्क डेफिनेटली रहता है, बट आपको एडवांटेजेस भी बढ़ जाएंगे। आप अगर 3 से 4 अगर आपके प्रैक्टिसेस हैं या आप करना चाह रहे हो, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि 2 प्रैक्टिस हमेशा अच्छा चलेगा या 3 अच्छा चलेगा, 1 खराब चलेगा, तो आपके पास बफर भी रहेगा। इन शॉर्ट में बताना क्या चाह रहा था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यू शुड कम अप एंड यू शुड कम अहेड विद सेकंड और थर्ड और फोर्थ ब्रांच। इन शॉर्ट, आप रेंट पे लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 साल के बाद आपको इससे बेहतर जगह मिले और आप वहां पे जाके परचेस करके शिफ्ट हो सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि वो जगह आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है और आप 2 या 3 साल के पहले ही वहां से शिफ्ट हो जाना चाहते हो। तो इन शॉर्ट, आई वुड लाइक टू से कि प्लीज स्पेयर सम टाइम, थोड़ा टाइम दीजिए, पहले रेंट पे स्टार्ट कीजिए, जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाला है उसको रिकवर कीजिए और अपने प्रैक्टिस को एक्सपांड करने पे बिलीव रखिए। मेरी ये दुकान अगर खरीदी हुई है या भाड़े पे है, ये सुनने के बाद अगर कोई मुझे रूट कनाल का जो चार्ज है वो अगर मैं 5,000 चार्ज करता हूँ
और अगर कोई कहता है कि ये आपकी खुद की दुकान है, मैं कह दूंगा हाँ, वो 5 का 6 मुझे नहीं देगा। आई मीन दिस इज माई माई अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब ये है। सो आई थिंक कि मेरा कंक्लूजन ये है कि आपको रेंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। प्ले सेफ एंड प्ले लॉन्ग। अंडरस्टूड। डॉक्टर सागर, योर टेक। सर एक क्या, मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल बच्चा की बिल्कुल सही बात है। पर क्या होता है कि इंडिया में क्या है कि बहुत लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि सर प्रॉपर्टी है मेरे पास, मतलब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा हूँ कि शायद कई लोगों का इनमें से ये क्वेश्चन हो कि प्रॉपर्टी है बट ऐसी लोकेशन पे नहीं है जो क्लिनिक के लिए सही हो। ठीक है, बहुत बड़ी है, ठीक है, 10 चेयर डाल सकता हूँ, वो शुरू करूँ कि ऐसी जगह रेंट पे शुरू करूँ और वो रेंट का प्रेशर आएगा। तो यहाँ मैं डॉक्टर रवि के साथ हूँ कि मैंने भी अपनी ऐसी प्लेस पे शुरू किया जो मेरी अपनी है, तो मुझे रेंट का स्ट्रेस नहीं है, नो डाउट। बट एक ऐसी प्लेस जो रेजिडेंशियल हो या बहुत ज़्यादा कमर्शियल ना हो, और एक कमर्शियल प्लेस पे प्रैक्टिस, दो बहुत डिफरेंट प्रैक्टिस है। मुझे इस प्रैक्टिस को प्रोफेशनल बनाने में टाइम लगा क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है, फिर रिलेटिव्स तो नहीं बट नेबर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिर वो आएंगे तो आपको ग्रांटेड लेंगे, तो आप फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेट हो गए। ठीक है, मैंने और वो 10 साल स्ट्रिक्ट बनाते बनाते कि ओके आप टाइम पे आएंगे, लेट आएंगे तो काम नहीं होगा, आप शू कवर पहन के आएंगे, then आप कंसेंट साइन करेंगे, एवरीथिंग। तो मेरा बनाते बनाते बन गया। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अगर टीम बना सकते हो तो 4 क्लिनिक खोलो, कोई बात नहीं। तो अगर आप वो सब हैंडल कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। मगर पेशेंट कई बार आपको बोलेगा कि किसी भी टाइम फोन करेगा, या सोचेगा कि घर पे ही तो क्लिनिक है या घर के पास ही तो क्लिनिक है, रेजिडेंशियल एरिया तो है, मैं तो ऐसे ही आ जाऊंगा। तो वो चीज़ हैंडल करनी फिर लॉन्गर टर्म में फ्रस्ट्रेट करेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा चलो पेशेंट्स आ रहे हैं, नेबर्स हैं, पैसा आ रहा है, बट फिर लॉन्गर टर्म में जब पेशेंट ऐसे ही पेशेंट ग्रांटेड लेने लगेंगे आपको, तो सो सॉरी। तो जो है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि रेंट का फायदा सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई चीज़ आपको ग्रो नहीं करते हुए दिख रही तो आप चेंज कर सकते हो उसी एरिया में। एरिया तो बहुत बड़ा है ना, पॉपुलेशन हमारी इंडिया की सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। तो आपने मयूर विहार में मैंने क्लिनिक खोला, मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है तो मयूर विहार में ही फेज 2 में खोला, तो फेज 3 में खोल लूंगा मैं। तो फेज 2 का पर्सन फेज 3 तक आ सकता है, इतनी पॉपुलेशन है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अगर कमर्शियल प्लेस आपको मिलती है अपनी, तो बहुत अच्छी बात है, जैसे संदीप बोला। मगर अगर आपको कमर्शियल प्लेस रेंट पे मिलती है, चाहे छोटी मिले, तो आप कमर्शियल प्लेस पे स्टार्ट कीजिए। अपना प्लेस तो आपके पास है ही हमेशा से, ठीक है। जब आप वो चल बैठेगी तो आप अपने प्लेस पे, ये लोग बोलते हैं जो घर में भी जैसे एमबीबीएस भी होते हैं कि एक कमरा डाल लिया कि कभी कोई आ जाएगा तो देख लेंगे, तो आप उसको तो कभी भी कर सकते हैं ना, अपनी प्लेस तो है ही आपके पास, ठीक है। बट कमर्शियल प्लेस पे स्टार्ट करेंगे तो लॉन्गर टर्म में अच्छा रहेगा रेंटेड के। अंडरस्टूड। अभी हमने डिसाइड किया कि ऑलवेज रेंटेड इज बेटर इफ यू कैन, अनलेस यू कैन ओन इट। ओके, तो रेंट स्टार्ट किया। रेंट का एडवांटेज क्या है कि आप मल्टीपल लोकेशंस खोल सकते हो, आपकी लिक्विडिटी आपके पास रहती है, यू आर नॉट इन कम्प्लीटली इन्वेस्टेड, आप फर्निशिंग में ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, एवरीथिंग डजंट गो इनटू द प्रॉपर्टी। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज अंदर का सामान। डू यू थिंक दैट सेकेंड हैंड सेटअप लेना चाहिए? बिकॉज मेनी पीपल आर गोइंग अब्रॉड, मैरिड, इंडस्ट्री छोड़ते लोग, तो सेकेंड हैंड सेटअप लेना चाहिए या फर्स्ट हैंड सेटअप लेना चाहिए? सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड ले दे तो सिर्फ चेयर सेकेंड हैंड चलेगा क्या? Should we be able to do cost cutting on that? What is your opinion? आप मुझसे पूछ रहे हैं? If you're enjoying this session, do not forget to hit the like button below so that YouTube keeps on showing you more such videos. And if you want to take your career to the next level, do not forget to subscribe to the Kaizen Dental. मैं मिडिल क्लास फैमिली से पला बड़ा हूँ। मुझे पता है कि घर पे पापा कभी सेकंड हैंड गाड़ी ले आए तो कभी कंप्यूटर ले आए, और वो कभी नहीं चला, कभी नहीं चला। तो मुझे तो हमेशा ये लगा है कि फर्स्ट हैंड जो मैंने लिया है ना, वो बहुत बढ़िया चला है। तो मैंने अपनी लाइफ में जो फर्स्ट बाइक भी ली, चाहे मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी, वो फर्स्ट हैंड ही ली, और चाहे मैं उससे 2 बार गिरा, उसकी हालत खस्ता हो गई, बट मैंने फर्स्ट हैंड ही चलाई, ठीक है। स्कूटी ली, गाड़ी ली, सब मैंने फर्स्ट हैंड ही लिया। तो सेकंड हैंड में अगर आपको लेना ही है तो ऑब्वियसली अच्छी डील्स मिलती है, और अच्छी डील्स मिल रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि कोई बाहर जा रहा है, आपको अगर आप इतना कैपेबल है कि उसकी आप
लाइफ चेक कर पाए, ठीक है, आप उसकी क्वालिटी चेक कर पाए, तो आप ऑब्वियसली स्टार्ट के लिए ले सकते हैं। बट अब इसमें दो चीज़ें हैं सर। कई लोग क्या है कि प्रैक्टिस को देते हैं कि हम जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस यही चलाओ, हमारे पेशेंट भी होंगे आपके पास, ठीक है, और हमारा सामान भी है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए सामान है, अब उसमें से आप सेलेक्ट कर लो, आप क्या क्या लेना चाहते हो, या सारा ले लो, ऐसे भी लेते हैं लोग। तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें आपके लिए काम की होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। कभी कभी वो बोलते हैं कि आप सारा लो वरना कुछ भी मत लो। कुछ लोग कहते हैं कि आप सेलेक्ट कर लो। तो आप में अगर वो कैपेबिलिटी है तो ठीक है, वरना आप चेयर वाले को साथ लेके जाइए, उससे एक बार दिखवा लीजिए कि कंप्रेसर की हालत क्या है, ठीक है। आपको नहीं पता लगेगा कि चेयर की हालत क्या है, आपको तो बाहर से वो कवर ओवर करके अच्छे से दिखा देंगे, फिर अंदर सर्किट की क्या हालत है, फ्यूज की क्या हालत है, ठीक है। वो सब चीज़ें अगर आप देख के चेक करके, मैंने सेकेंड हैंड तो नहीं, बट अपने क्लिनिक पे जो दूसरा क्लिनिक खोला, वहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ था बहुत अच्छे से सेट, मैंने उसको ले लिया, और वो बाद में जो कंडीशन निकली है वो वॉश थी। तो मुझे पता लगा कि मुझे एक बार कारपेंटर को दिखा लेना चाहिए था अपने, उसके नहीं जो मुझे रेंट पे दे रहा है, ठीक है, अपने कारपेंटर को। तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा रिसीव करने का फैक्टर ज्यादा है, ठीक है। वो आफ्टर महाराष्ट्र स्टार्ट होने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे तो नॉर्थ इंडियन एरिया पे तो बोलूंगा कि आप बहुत सोच समझ के लीजिएगा। तो ये नहीं कि डॉक्टर रिसीव करेगा आपको, डॉक्टर तो अपना काम करके चला जाएगा, तो जो डील कर रहा होगा बीच में वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हो जाए। तो फर्स्ट हैंड अगर आप ले पाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ लंबी है, फिर आपको कोई भी चीज रुकती है ना क्लिनिक में तो इतनी इरिटेशन होती है। आपका एक चेयर का अगर आपका प्रीवियस सिरिंज रुक गया, आपका काम रुक गया। आपका आरबीजी का दरअसल एक्सरे मशीन का एक बटन रुक गया, आपका काम रुक गया, ठीक है। तो क्यों वो रिस्क लेना है? तो आप बेटर ये है कि आप लोन लेके नया लीजिए, आपको शेल्फ लाइफ उसकी ज्यादा मिलेगी, आपको उसका सर्विस मिलेगी, उनकी सर्विस पता नहीं कौन क्या दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपको जो है उसकी क्वालिटी बेटर मिलेगी, नई चीज मिलेगी। पुरानी चीज के हिसाब से मैं देखता हूँ कई बार ऐसी चेयर्स भी हैं जो पाँव से ऐसे किक करते हैं तो वो ऊपर उठती हैं, बहुत सस्ती चेयर्स है, 20-30 थाउजेंड की है। बट फिर वही है कि पेशेंट भी देखता है, पेशेंट भी इरिटेट होता है, आपका काम स्लो होता है ना, तो बहुत इरिटेशन होती है। फिर आप बुलाते रहेंगे लोगों को, फिर आप बोलेंगे कि आज चेयर ठीक नहीं है, तो कोई पेशेंट नहीं रुकेगा। पेशेंट भी आजकल फास्ट हो गया, पेशेंट को चाहिए कि अभी पेट ठीक करना है तो कीजिए, और ना बहुत डेंटिस्ट। जो आपका लॉयल पेशेंट है वो ऑब्वियसली रुकेगा, पर स्टार्ट में तो आपके लॉयल पेशेंट्स नहीं होंगे ना। तो उस टाइम पे बैंग ऑन आपको चाहिए कि एसी भी सही चल रहा है, असिस्टेंट भी ठीक है, क्लिनिक भी ठीक है, लाइटिंग भी ठीक है, कंफर्टेबल भी है। तो उस टाइम पे ये रिस्क ना उठाए तो बेटर है, मजबूरी है तो बात अलग है। ये तो मेरा टेक है सर, बाकी डॉक्टर बताएंगे। Dr. Ravi, what do you think? Second hand, first hand? No, even I am of the same opinion. I think डॉक्टर सागर ने बहुत अच्छे से बताया. We should go ahead with first hand. मेरा सिंपल सा कहना है, अगर आप लोकल ट्रेन अगर आप ट्रेन में कहीं जर्नी करना चाहते हो या ओला उबर में आप जब ट्रैवल करते हो, सो आपको नई कार या नई ट्रेन मिलती है तो आपको कैसा फील होता है, और पुरानी मिलती है तो आपको कैसा फील होता है. एग्जैक्टली अगर नई ट्रेन अगर आपको नए डब्बे में मिल गई तो यू विल एंजॉय दैट जर्नी, आपको एक अच्छी सी खुशी होती है. अगर आप एक कार आपने ओला बुक की है और भले वो वैगन आर या कोई भी सिंपल सी कार हो, लेकिन अगर आपको नई कार मिलती है तो एक अंदर से एक यूफोरिया होता है, राइट. इन द सेम वे आई थिंक कि मैं मार्केटिंग पे ज्यादा स्ट्रेस देने वाला बंदा हूँ, तो आई बिलीव कि जो दिखता है वो बिकता है. और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज दिखेगा और किसी पे पेशेंट बैठेगा और नजदीक से देखेगा तो वो आपकी चेयर होगी. तो आई थिंक चेयर पे आपको अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए. चेयर के साथ साथ आपको एरोटर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज एरोटर से आपका काम फास्ट होगा, स्मूथ होगा. आई थिंक माउथ मिरर के सेट पे अच्छा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, नया ले लेना चाहिए. फर्नीचर भी समवॉट नया होना चाहिए. अगर आप कोई चीज काम चलाना चाह रहे हो तो आई थिंक आपको बहुत सोच समझ के बेसिक इन्वेस्टमेंट जो भी होना चाहिए आपका बहुत सही होना चाहिए. अगर आपको कहीं भी बजट ऊपर नीचे करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ इंटीरियर में यू कैन प्ले अराउंड. आप इंटीरियर है ना, 1 महीने बाद एसी लगा दो, एसी पुराना ले लो बल्कि चलेगा. यू गेटिंग माई पॉइंट. अब आपकी चेयर जो आपको बैठ के काम करने के लिए जो चेयर मिलती है और आपकी जो टेस्ट पे जो चेयर होती है, वो वाली चेयर, महाराजा वाली चेयर जिसमें वो बॉस जैसा, वो बात में ले लो. बट पेशेंट की चेयर पे आप इन्वेस्ट करो, बिकॉज आप बोल पाओगे कि सर हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं बिकॉज हमारी वन ऑफ द लेटेस्ट चेयर है, हमारी बहुत बढ़िया चेयर है. एंड पेशेंट को ये सारी चीजें दिखती है तो उसका अंड्यू नहीं, उसका एडवांटेज आपको मिलता है. एंड बिसाइड दैट, जैसे डॉक्टर ने कहा कि ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो ओवरऑल आई सपोर्ट दिस पॉइंट दैट यू शुड गो अहेड विथ
new chair and new armamentarium. Thumbs up. Understood. बीच में एक क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोग एक क्लिनिक या 2 क्लिनिक के बारे में बात कर रहे थे. डॉक्टर सुरेश ने पूछा है, पहले बिकॉज आई नो रवी's answer to this, first I'll ask Sagar about this. Should you maintain 2 clinics? Is it better, or you should be focused with a single clinic? कल हमारा डिस्कशन है, so I want to know your perspective. नहीं सर, I'll answer this, but मैं फिर भूल जाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ. I've seen both of you traveling to temples also. So religious तो नहीं, एक spiritual context से एक बात उधर जाता हूँ. आप दोनों ने, आपका भी सर मैं व्यू चाहता हूँ, डॉक्टर रवि ने तो दे दिया कि न्यू ही लिया जाए. क्या आपको नहीं लगता कि कभी आप कोई चीज़ न्यू जब लेते हैं क्लिनिक के अंदर, कोई भी चीज़ छोटी मोटी बड़ी, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी मैटर करती है. और मुझे तो लगता है कि मेरे क्लिनिक में कोई चीज़ नई आती है ना जो मेरी पसंद की आ जाए, तो अचानक ही एक एनर्जी ऐसी होती है कि, और एनर्जी से मुझे मतलब हैप्पीनेस से तो है ही है, पैसे से बहुत है. तो पेशेंट अचानक मैं देखता हूँ कि वह उस तरीके के कन्वर्ट होने लगते हैं जो मतलब सडनली फुल माउथ रिवाइन लगे. मतलब मैं थोड़ा अलग बात कर रहा हूँ, लोग इसको गलत तरीके से ना लें. मतलब मैं सडनली ब्लड प्रेशर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली. Yeah, तो अगर आपने कुछ खा लिया, you are attracting those kind of patients. क्या आप तो नहीं इस चीज पे आपके साथ भी होता है कि मैं ही अलग बनूं? नहीं होता है ये. दिस इज आई मीन, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कुछ कुछ लोग इसको लालची कहेंगे. जिसको जो कहना है कहो. अल्टीमेटली पेशेंट का काम अच्छा कर रहे हो, गुडविल जनरेट हो रही है, पैसा आ रहा है, पेशेंट खुश है हाँ. जो भी पैसा दे रहा है. आई थिंक आपको, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि एवरी 4 to 6 मंथ पे कुछ ना कुछ नया लेते रहना चाहिए, और नया लेते रहना चाहिए. बहुत दिनों के बाद अगर समझो आपको लिखने में मजा नहीं आ रहा है, तो एक नई पेन ले लो, फिर देखो लिखने का मजा आता है. हम नया फोन लेते हैं तो पहले 2-4-6 दिन उस फोन में लगे रहते हैं. नए शूज लोगे तो आप वॉकिंग पे ज्यादा जाने लगोगे. तो जो चीज में आपको थोड़ा इंटरेस्ट जाने लगे, लेकिन आपको पता है फायदे के, नया ले लो. राइट. ये तो That's a good एक idea. असिस्टेंट भी आया था मेरे पास, जो उसके सुबह सुबह शक्ल ऐसे होती थी कि मतलब शक्ल ही ऐसी होती थी कि नमस्ते. मैंने उसको सिर्फ इस बेसिस पे नहीं रखा कि वो बहुत बढ़िया काम कर लेगा, टाइम पे आ जाएगा, और वो इतनी मनहूस एनर्जी के साथ आता था. आज घर में ये हो गया, घर में वो हो गया. मैंने उसको बोला भाई तो कहीं और ले जाए इस एनर्जी को. मुझे तो लगता है पर्सन्स की भी ऐसी एनर्जी हो जाती है. और सर आपका हाइड्रेशन दो प्रैक्टिस वाले में से डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, वो मल्टीपल प्रैक्टिस सागर का. हाँ सर. बट 2 प्रैक्टिसेस 4 प्रैक्टिसेस तभी जब उतनी आपके पास कैपेबिलिटी टीम को मैनेज करने की हो. मतलब टीम के साथ साथ खुद को मैनेज करने की हो. अगर आपका फेस पे चल रहा है प्रैक्टिस, जैसे मेरा क्लिनिक मेरे श्री के फेस पे चलता है, मेरे पे ज़्यादा चलता है, तो अब उसके इसमें अगर आप 2 प्रैक्टिस ओपन करते हैं तो सबसे पहले रीजन क्या है दूसरी प्रैक्टिस का, वो जानना जरूरी है. ठीक है. अगर आपको इसलिए, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इसलिए ग्रो करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम एम्बिशियस इनफ टू हैव मोर पेशेंट्स एंड मोर मनी एंड मोर व्हाटएवर ही फील्स, तो एक अलग तरीके से फिर आप बिल्कुल, तो फिर अलग तरीके से आप दूसरा प्रैक्टिस ओपन करेंगे. और अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस ये नहीं चल रही इसलिए आप सेकंड ओपन करना चाहते हैं, तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी ये क्यों नहीं चल रही. जिस बात पर हमारी बात हो रही है, ये तो चल रही है ना. फिर उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि एक सेकंड क्लिनिक भी ओपन हो तो दैट इज ओके. तो बट अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी ये नहीं चल रही, तो पहले तो आप ये जानो कि आपकी ये क्यों नहीं चल रही. अगर ये लोकेशन इसका रीजन है और आप चाहते हैं कि लोकेशन आप चेंज करें, तो मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सारा सामान उठाइए और उठा के वहाँ दूसरी जगह ले जाइए. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अच्छे से रिसर्च करें कि आप दूसरी जगह जहाँ जाने वाले हैं वहाँ वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं क्या जो आपके पिछली प्रैक्टिस में नहीं थी, जैसे कि क्राउड या एरिया या पार्किंग या जो भी रीजन था आपका, मार्केटिंग के ऑप्शंस. अगर वो है तो आप खोलिए. अगर आप साइमल्टेनियस आप 2 प्रैक्टिस लाना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको फेस ऑफ द क्लिनिक दोनों प्रैक्टिसेस पे अगर रहना है, तो जिस प्रैक्टिस में आपके लॉयल पेशेंट्स हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे जरूर बोलेंगे कि आप आज नहीं है, मुझे आप ही को दिखाना था. तो वो जो रनिंग है चाहे 15 मिनट्स की दूरी पे हो, वो कैसे मैनेज करेंगे वो डॉक्टर रवि ज़्यादा बता पाएंगे. मेरा तो क्या था कि कभी गाड़ी लेके भाग रहा हूँ, कभी स्कूटी लेके भाग रहा हूँ, मुझे तो मैनेज करना ही था. तो मैं तो इस तरीके से मैनेज कर रहा था. बाकी डॉक्टर साहब आप बताइए कि आप इस हिसाब से 2 प्रैक्टिसेस या सिंगल प्रैक्टिस? आई थिंक
डॉक्टर सागर ने अच्छे से समराइज किया है, बताया है चीज को. आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट विच वन शुड थिंक अपॉन इज क्लैरिटी. मतलब सेकंड क्लिनिक डालने के पीछे पर्पस क्या है. मतलब कुछ लोग है ना फेम के लिए करते हैं, कुछ लोग जस्ट क्योंकि मेरे दोस्त का है तो कर लेना चाहिए. कुछ लोगों को लगता है कि वैलिडेशन आ जाएगा, एक सेकंड क्लिनिक डालेंगे तो फिर अलग ही छाप छूटेगा. मतलब उसके बाद तो सब हम ही हम है, यू नो. आई थिंक वो समझने लगते हैं. कुछ लोग को लगता है कि मुझे काम बढ़ जाएगा या उस एरिया में जाने के बाद अलग तरीके का काम मिलेगा. आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए. सेकंड क्लिनिक डालने के पीछे एक चीज आपको बहुत समझ लेनी होगी. या तो आप दोनों जगह पे प्रेजेंट रह पाओ, फ्लेक्सिबल इनफ. आर यू रेडी? क्या आप उतना एफर्ट देने के लिए तैयार हो? पैसा तो आपको मिलेगा लेकिन उसके लिए एफर्ट भी आपका लगेगा. आपका या तो एफर्ट लगेगा या तो आपकी वाट लगेगी. ठीक है, तो आप वो समझ के चलो कि भाई आपको एफर्ट लगाना है. तो एफर्ट लगाना है, या तो आपको लगाना होगा या तो आपको टीम डेवलप करनी होगी. टीम डेवलप करना इज नॉट एन इजी टास्क, लेट मी टेल यू. जो डेंटिस्ट को आप हायर करेंगे और सिखाएंगे, थोड़े दिन के बाद उनके खुद के अपने एक सपने होते हैं जो आपसे भी शायद बड़े होंगे, तो वो भागेंगे. वो रिप्लेसमेंट, उनको रिप्लेस करने के बाद नया कोई मिले, वो इट्स अ बिग गेम, तो अल्टीमेटली हैव दैट क्लैरिटी. और अगर आपको क्लैरिटी है तो गेट सम नॉलेज एंड देन यू कैन गो अहेड. 2 क्लिनिक होने का फायदा बहुत है, बट उससे ज्यादा नुकसान है. आप एक साथ एक पैर आपका संभला नहीं है, एंड यू आर ट्राइंग टू राइड ऑन समथिंग एल्स एज वेल. मतलब फिर यू कैन बी इन ट्रबल. सो आई थिंक सेटिंग अप अ 2 प्रैक्टिस इज गुड. ऐसे भी कर लो, क्योंकि आप सीख जाओगे. दूसरा क्लिनिक क्यों नहीं डालना चाहिए अगर आप नहीं चला पाए. Great. My take is always when you start, पहला एक ही क्लिनिक होना चाहिए. ठीक है, till you have a certain number, मतलब turnover plus a certain amount of profit. ठीक है, पहला वो चीज है. दूसरा चीज, if you are planning to do it yourself, मतलब यहाँ से वहां भागो, you have to see like how Dr. Ravi told कि timing आप manage कर पा रहे हो क्या. Everyone thinks that they can work very hard कि मैं भी 10-12 घंटे काम कर लूंगा, वो तो 14 घंटे कर तो मैं 16 घंटे कर लूंगा. रिमेंबर, एवरीवन डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ स्लॉगिंग इट. हर एक का एक लाइफस्टाइल रहता है, माइंडसेट रहता है. तो अगर आप खुद करने वाले हो तो यू विल बी एबल टू स्लॉग इट. सेकंड, अगर आप किसी से करवा रहे हो, जैसे डॉक्टर रवि ने बोला है, टीम बिल्डिंग में मैं सबसे पहले बोलूंगा, अगर आपका खुद का प्रैक्टिस भी है ना, सिंगल चेयर भी है, इफ यू आर प्लानिंग कि मैं दूसरा प्रैक्टिस जाके वहां पे किसी को बिठाऊंगा, सबसे पहले खुद के क्लिनिक में किसी को बिठाओ. आर यू अ गुड टीचर? Would you be able to inculcate your SOPs, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, आपका जो सिस्टम्स है, आप किसी को अपने क्लिनिक में आपके अंडर बिठा के पहले वो कर पा रहे हो क्या? आपने दूसरा डाल दिया, वो बंदा आपको दिख ही नहीं रहा है, मतलब यू डू नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट. तो आप ये इमेजिन मत करो, जो दूर बैठा है मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा. पहले देखो कि आपके अंडर जो है उसको कंट्रोल कर पा रहे हो. So if you want to grow with practices, the most important thing is self-growth. So you have to focus on growing as a leader, as a organizer, as a team builder. There are multiple facets. Dr. Ravi बहुत आराम से बोल रहे हैं कि 4 चेयर चला सकते हैं, but you have to see the effort is put to grow as itself. मतलब उन्होंने 4 क्लिनिक करने के लिए क्या क्या सीखा है वो आपको देखना पड़ेगा, फिर जाके वो करो. Don't start with 4, start with 1. And if you think you're interested in going and expanding, yes. There is another school of thought. कुछ लोग बोलते हैं कि 4 जगह भागने से अच्छा मैं एक ही जगह पे 10 चेयर डालू, 15 चेयर डालू. राइट. वो एक दूसरा फिलोसफी है. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फिलोसफी फॉलो करना है. मतलब हर एक का अलग है. सो डोंट, मतलब टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन, बट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट. जैसे उन्होंने डॉक्टर रवि ने बोला, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा एक दोस्त बोलता है कि हम सब दोस्त जितने भी हैं, जितना भी हमारा ग्रुप था कॉलेज का, सब घर के नीचे शटर डाल के बैठ गए हैं. हम घर से बाहर कब निकलेंगे? हमारे इतने सपने थे गोवा जाने के, करने के, इसलिए हम दूसरा क्लिनिक डाल देते हैं, क्योंकि कम से कम घर से बाहर निकल के जो है दूसरे क्लिनिक पे जाएंगे तो हमारी कुछ तो हमारे बाप हमारी इज्जत करेंगे कि तुमने बाहर जाके क्लिनिक पे गए. तो ये हमारे ग्रुप में जोक चलता है, क्योंकि सबके क्लिनिक घर के नीचे ही है, क्योंकि मार्केट एरियाज में ही सबके घर हैं. डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, प्लीज. सॉरी. क्योंकि आप भले ही अगर आपकी एक प्रैक्टिस हो या आप दूसरी प्रैक्टिस डालना चाह रहे हो, और थर्ड और फोर्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप जो भी करना चाह रहे हो, यू कैन नॉट रन अवे विदाउट मेकिंग अ टीम. अगर आप टीम नहीं बनाते हो ना, तो क्या होगा? अगर आपकी भले एक ही प्रैक्टिस है,
अब 10 साल 12 साल 15 साल के बाद कभी तो आप छुटकारा चाहोगे कि मैं भी 15-20 दिन के वेकेशन पे जाऊं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यू विल हैव टू कम अप विद अ टीम, यू विल हैव टू बिल्ड सिस्टम्स एंड यू विल हैव टू मेक सम प्रोटोकॉल्स एट योर प्लेस। आप का एक प्रैक्टिस हो, 2 हो, 3 हो, अगर आप अपने फर्स्ट प्रैक्टिस में ये चीज कर पा रहे हो सक्सेसफुली, देन दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स कि आप सक्सेसफुली दूसरा क्लिनिक डाल सकते हो। और बिफोर यू बिगिन, आप ये करने के पहले हमेशा यू शुड, जैसे हम डेंटिस्ट्री में ऑब्जर्वरशिप कर लेते हैं ना, ऐसे ही हमको जो टीम प्लेयर्स होते हैं, जो जो बड़े टीम में खेलते हैं, यू नो व्हेन आई से खेलते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग इन यू नो देयर आर लॉट ऑफ डेंटिस्ट जिनके बहुत सारे एवेन्यूज है या एक ही एवेन्यू है बट टीम उनकी बहुत बड़ी है। तो आई थिंक इट्स रियली हाई टाइम दैट यू शुड गो एंड यू शुड learn and imbibe team management, and you should learn about systems from these giants, and then फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इन सेकंड क्लिनिक डालने के बाद जब बंद अगर होता है ना, तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। वो जो आप सोचते हो ना कि जो फायदा होगा दूसरा क्लिनिक डालने के वजह से, वो सब आप पे बाउंस बैक करेगा। सो आपका भले ही प्रैक्टिस है, प्लीज टीम बिल्डिंग and developing systems and protocols and goals, daily goals, monthly goals, ये सारी चीजों पे आपको फोकस कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन है, शुड आई गो फॉर अ वॉल माउंटेड एक्सरे और अ पोर्टेबल एक्सरे? आई थिंक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, लेट मी आंसर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और अगर बजट इज अ क्रंच, तो आपको वॉल माउंटेड से स्टार्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज आपके पास टाइम ही टाइम है, आप डेवलप करते रहो। एंड आई मीन अगर आप फाइनेंसेस उसको कहीं और यूटिलाइज करके आप कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो तो ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली आपको पोर्टेबल एक्सरेस ले लेना चाहिए। दिस इज माय टेक। Understood. The next question, most important question, how do we decide charges? डिसाइड चार्जेस सर, बिफोर स्टार्टिंग दैट, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि क्रंच कर सकते हैं बजट को, तो ठीक है। एक और चीज़ ये है कि मेरे ये एक डॉक्टर आए थे बी विद अस, तो वो एसोसिएट डेंटिस्ट से हमारे, जब उन्होंने क्लिनिक खोला पंजाब में, तो उन्होंने 2 चेयर डाल के क्लिनिक खोला। तो मैंने उनको तब ये सजेस्ट किया था कि क्योंकि मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बजट अगर कम है तो आप वॉल माउंटेड चलिए, बट अगर आपका प्लान ये है कि मल्टीपल चेयर का एरिया है मेरे पास और मल्टीपल चेयर में डालने वाला हूँ, तो अगर आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप पोर्टेबल ले लें तो बेटर है, क्योंकि बहुत जल्दी अगर डालने वाले हैं तो उससे क्या है कि आप बार बार इधर उधर फिर आप दोबारा वॉल माउंटेड निकालना पड़ेगा आपको। आप एक बार में उसको कर सकते हैं। और सर चार्जेस की तो क्या बात है डिसाइड की कि आई बिलीव कि यही बात है, इमोशनल हो जाते हैं चार्जेस पे ना, हम बहुत जल्दी जब बात करेंगे, आपने बोला था ना यू गेट वेरी इमोशनल ओवर दिस थिंग। तो चार्जेस में ऑब्वियसली एरिया पे डिपेंडिंग है, इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। ठीक है कि डॉक्टर रवि और मैं तो इस बारे में पूरे 80 मिनट के सेशन ले चुके हैं। ठीक है, तो बट यही है कि मेजर बोला जाए तो चार्जेस डिसाइड कैसे करने हैं, वो सबसे पहले तो आपकी मार्केट पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो आपके स्किल पे डिपेंड करता है मुझे लगता है। पर क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं और आप एरिया में ऐसे बैठे हैं जहाँ लोग इंसान 50 रुपये कंसल्टेशन भी नहीं देना चाहता, तो वहाँ आपका वो स्किल के हिसाब से आप चार्ज करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं चलेगी, ये हो जाता है। तो पहले तो आप ये अपने जो चार्जेस से पहले जो प्रैक्टिस जहाँ पर खोलने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा कि वो मैच कर रहा हो। मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे सीलमपुर में क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, शादरा सीलमपुर ईस्ट दिल्ली का पार्ट आता है दिल्ली में, जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा एरिया नहीं है। तो वहाँ वो खोल के बैठा और वो कहता है कि तू अगर 500 रुपये कंसल्टेशन लेता है तो मैं भी 500 रुपये लिखूंगा, तो मेरे को क्यों नहीं देता, कि तुझे क्यों देता है? तो मैं उसे मजाक में बोलता हूँ कि तेरी शक्ल खराब है। मगर मजाक की बात अलग है, बात यह है कि उस एरिया में लोग नहीं देना चाहते, उस एरिया में लोग कंसल्टेशन नहीं देना चाहते, सीधे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। पहले तो वो मैच करना चाहिए आपका, उसको ध्यान से मैच करके क्लिनिक खोलिएगा। दूसरी चीज, एरिया के साथ साथ आप आसपास के एरिया में कैसे पता करेंगे कि क्या चार्जेस चल रहे हैं? ठीक है, तो आप ऑब्वियसली, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ भी आप क्लिनिक खोलने वाले हैं वहाँ के आसपास के डेंटिस्ट से मिलिए, जाके फ्रेंडली बिहेवियर मिलिए। ये नहीं, ये चालाकियाँ बहुत खराब लगती हैं कि आप असिस्टेंट को भेज रहे हैं, फिर कॉल्स करवा रहे हैं, उसमें उनको दिख रहा है ट्रू कॉलर पे की कॉल आ रही है, मेरे पास आते हैं कॉल जैसे, तो मैं उनसे बोलता हूँ यार मुझसे डायरेक्ट आके मिल लो ना भाई, तुम्हारे फायदे की बात करूंगा और तुम्हें चार्जेस बता दूंगा कितने लेता हूँ।
तुम क्या असिस्टेंट को भेजोगे, मुझे दिख रहा है मुंह में कुछ नहीं है, वो सिर्फ चार्जेस सारे पूछे जा रहा है मेरे सिस्टम से। तो वो सब नहीं, आप सीधे जाके मिलिए और देखिए कि आसपास क्या चार्जेस चल रहे हैं। उसके बाद ये डिसाइड कीजिएगा कि अच्छा इन सब के चार्जेस 3,000 रुपये चल रहे हैं रूट कनाल के, तो मैं 2,000 से शुरू कर देता हूँ क्योंकि इससे मेरा फायदा होने वाला है। नहीं, फिर उसको डिस्टर्ब मत करिए उस पैटर्न को। उसमें अगर आपको लगता है यू आर नॉट स्किलफुल इनफ कि आप 3,000 ले सकते हैं, तो आप 2,500 ले लीजिए। पर ये मत कीजिएगा कि आप बिल्कुल 1,000 पे आ जाएं जस्ट बिकॉज आसपास से आपको चैलेंज करके कम करना है। तो चार्जेस मेरे हिसाब से एक तो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होते हैं, दूसरा स्किल के हिसाब से डिसाइड होते हैं। मैं अपने प्रैक्टिस में पर्सनली चार्जेस को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चेंज नहीं करता। मतलब अगर बच्चा आ रहा है और अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, अगर बच्चा आ रहा है या अगर मुझे जीआईसी एसोसिएशन करनी है या मुझे कॉम्पोजिट करनी है, सबके चार्जेस सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा स्किल उतना ही लगना है। ठीक है, जीआईसी करने में भी मेरा स्किल लगेगा, कॉम्पोजिट करने में। तो मुझसे कोई ये नहीं पूछता कि सर, बहुत जगह तो बोलते हैं कि वो लेजर वाली फिलिंग इतनी महंगी है, वो वाली सस्ती है, या वो जिरकोनिया ग्राउंड महंगा है कि वो वाला मेटल सस्ता है। तो मैं उसको एक लेवल पे ले आया हूँ कि आप ये हमारे यहाँ सब कुछ सिमिलर है। अगर कोई मुझसे ये बहस वैसे तो यहाँ होती नहीं है, बट आपसे कर सकता है कि हमें लैब पर्सन का पता लग गया है, लैब तो 500-600 रुपए लेती है पीएफएम के, आप इतने क्यों ले रहे हैं ऐसे। मेरे मेंटर से एक ये भी पूछ चुका है कि इम्प्लांट तो मैंने पता किया था, इम्प्लांट का तो सामान 3,000-5,000 का आ जाता है, आप क्यों 45,000 रुपये ले रहे हो। तो सर ने उनको बोला था कि सर ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये सारा सामान आप ले आना, ठीक है, मैं आपका इतने जितने में आप सामान लाओगे ना उतने में मैं डाल दूंगा, सामान ढूंढ के ले आना। तो इस तरीके से भी कई बार पेशेंट आपसे बोल देता है। तो जब पेशेंट ने मुझे पहली बार ऐसा बोला कि आपका लैब चार्जेस इतना नहीं है, फिर आप इतने क्यों ले रहे हो, मैंने उनको बोला सर मेरे लैब चार्जेस 0 नहीं, मेरे सब कुछ लैब मेरी अपनी है, मेरा मटेरियल भी सारा मैं खुद ही बनाता हूँ, सब मेरा अपना है। ठीक है, मुझे कोई 0 चार्जेस है, कुछ मटेरियल की कॉस्ट नहीं लेता सर मैं, या मैं कुछ बेचने नहीं बैठा हुआ, या मैं बेचने बैठा हूँ अपना दिमाग और अपने स्किल में प्रोफेशनल पर्सन हूँ। ठीक है, तो मैं उसको कैसे करूंगा जिससे आपको दर्द ना हो, परेशानी ना हो, और वो लॉन्ग टर्म चले, परेशानी ना हो, दिस इस पे मेरे चार्जेस डिपेंडेंट है। यही चीज अगर आपको और आसानी से समझनी है तो आप कॉलेज चले जाइए, पास में कॉलेज है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास यही स्किल नहीं है, इसलिए वहाँ चार्जेस कम है, मटेरियल सेम यूज कर रहे हैं शायद हम ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंट को कई बार समझ में आता है कि वो पैसा आपसे नहीं करता। तो आप अपने चार्जेस को अपने स्किल पे डिपेंड करके चलेंगे तो आप बढ़ाएंगे भी तब जब आपका स्किल बढ़ेगा। ये नहीं कि आपने मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया तो आपने उसको बढ़ा दिया, वो तो बढ़ता ही है, बढ़ाना ही होता है। वो तो सर भी गाइड करते हैं हमको कि 10% इन्फ्लेशन आता है तो हमें बढ़ाना है, फिर 20% पे बढ़ाना है, गेयर सिस्टम की तरह बढ़ाना है। बट मुझे लगता है चार्जेस इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। बाकी आप साहब ज़्यादा क्लैरिटी से बताएंगे। Dr. Ravi, how would you decide Well, charges? आई थिंक कि डॉक्टर सागर ने बहुत अच्छे से बताया। आई मीन उन्होंने बहुत सारे वन लाइनर्स पे दिए जो बडिंग डेंटिस्ट को बहुत हेल्प करेंगे। बिफोर मैं आई बिगिन, मैं ये कहूँगा कि आई एम सॉरी, मेरा बैटरी 5% है, बट मेरे पास एक और डिवाइस है, अगर ये ऑफ हो जाएगा तो मैं उस डिवाइस से आऊँगा और मैं आंसर दे के जाऊँगा। एनीवेज लेट मी स्टार्ट। पहली चीज़, आपकी चार्जेस है ना जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ लोग मिस्टेक करते हैं, अपने चार्जेस अपने सराउंडिंग डेंटिस्ट के हिसाब से रखते हैं और उनसे कम रखते हैं यूजुअली। मेरा सिंपल सा ये मानना है कि मेरे चार्जेस मैं डिसाइड करूँगा, वो नहीं। मेरे घर में क्या आज खाने में बनेगा वो मैं डिसाइड करता हूँ, कितनी रोटी खानी है वो मैं डिसाइड करता हूँ, तो मेरे चार्जेस में मैं ही डिसाइड करूँगा। अब मैं कैसे डिसाइड करूँगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे आप इसको यू नो मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। आपकी है ना लाइफ टाइम वैल्यू, एक आपकी जिंदगी के कुछ सपने होते हैं, जैसे मेरे को मॉरिशस जाना है, मेरे को घर खरीदना है 2 करोड़ का, मेरे को मेरे बच्चे के लिए 1 करोड़ का एजुकेशन करना, व्हाटसोएवर। समझो कि आपकी जितने भी जिंदगी भर के सपने हैं वो 10 करोड़ के हुए, से फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब मुझे ये चीज पता चल गया कि से फॉर एग्जाम्पल मैं 30 ईयर्स का हूँ और मुझे 60 साल तक कमाना है, तो मेरे हाथ में 30 साल है और 30 साल में मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। बिकॉज मेरे सपने जो है वो उनमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की शादी अच्छी जगह पे हो, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड हो, मैं यही एरिया में घर लेना चाहता हूँ। एक चीज तो सॉर्टेड है कि 30 साल में मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं फॉर XYZ रीजन। अब मैं उसको डिवाइड करूंगा, पर ईयर में कितना आएगा उसको डिवाइड करूंगा, पर मंथ में कितना आएगा उसको डिवाइड करूंगा, वर्किंग डेज में पर डे में कितना आएगा, और उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा
कि अगर दिन में मैं 5 पेशेंट लेता हूँ तो पर पेशेंट मेरा वो कॉस्ट क्या होगा, तो मेरी जिंदगी के ऐसे हर किसी के लाइफ के अपने अपने एक सपने होते हैं। प्लीज उन सपनों को लिखिए और उन सपनों का वैल्यू लिखिए और फिर उनको फाइनल कीजिए, टोटल अमाउंट पे आइए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप कितने साल तक काम करेंगे। आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद आप उसको पर डे पर आवर बेसिस पे निकाल दीजिए एंड देन आ जाएगा आपका वर्थ। से फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि समझो 30 साल में मुझे अपनी डॉटर के एजुकेशन के लिए 1 CR मुझे 30 साल में चाहिए। अगर 30 साल में 1 CR चाहिए तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं अपना चार्ज कम चार्ज करूंगा, अपने पेशेंट से कम चार्ज करूंगा, तो क्या मैं वो टारगेट अमाउंट फुलफिल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर उसकी एजुकेशन में अगर 50 लाख रुपए लगने हैं तो वो लगने ही है। मैं वहां अगर 49 लाख रुपीज दूंगा तो उसका एडमिशन नहीं होगा या वो 1 साल वेट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब कि आपके सपनों की एक वैल्यू होती है और उनको एक डेडलाइन दिया गया है, उसके हिसाब से आपका पर डे और पर आवर का वैल्यू आता है। वो वैल्यू के हिसाब से आपको काम करना होगा। से फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 महीने में 1 लाख रुपए बनाना है, चलो जाने दो, सारी चीजें हटाओ, 1 महीने में 1 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं 26 दिन काम करता हूँ, लेट मी डिवाइड 1 लाख रुपीज को 26 से डिवाइड करोगे तो 3,500 रुपए या 3,800 रुपीज पर आपका पर डे का कैलकुलेशन आता है। अब मान लो आप 5 पेशेंट करते हो तो कैलकुलेशन के हिसाब से 700 to 800 रुपीज पर पेशेंट आता है, ठीक है। तो आप अगर दिन में एक ही पेशेंट कर रहे हो तो आपको उस पेशेंट से 3,800 रुपीज कमाना होगा। अगर आप 5 पेशेंट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट, और ये जो चार्ज आपको करना होगा ये आपके क्लिनिक के फिक्स चार्जेस होंगे, ये वेरिएबल चार्जेस, उन सबको हटा के ये चार्ज करना होगा। तो समझो आपकी क्लिनिक में एक ही पेशेंट आ रहा है तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो दैट दीज थिंग्स, जब आपको अपनी सपनों का प्राइस पता होता है ना तो आप अपनी वर्थ डिसाइड करते हो और उसके हिसाब से चार्ज करते हो। अब मुझे लगता है कि यार मेरे सपनों की कीमत तो बहुत ज्यादा है, तो मैं पैसे कैसे जमा कर पाऊंगा? तो मैं उस हिसाब से एरिया डेवलप करता हूँ कि मैं इस एरिया में प्रैक्टिस करूंगा। अब उस एरिया में जाता हूँ तो मुझे लगता है इस एरिया में मेरी वाली स्किल तो नहीं चलेगी, तो मैं स्किल डेवलप करता हूँ। दैट्स हाउ यू डेवलप योरसेल्फ। सो कीप ऑन अपग्रेडिंग, और ये सारी चीजें आपको फुर्सत में बैठनी चाहिए और आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। दैट्स हाउ यू डिसाइड योर चार्जेस। मतलब मुझे इन शॉर्ट ये कहना है कि भाई अपने लाइफ का आई थिंक उनका नेटवर्क गया है। तो बेसिकली डॉक्टर रवि का कहना है कि यू शुड नो हाउ मच यू वांट टू अर्न ओवर अ ईयर, ओवर योर एंटायर लाइफ टाइम, डिवाइड दैट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स यू आर गोइंग टू वर्क। सो अगर आपको 10 करोड़ कमाने हैं, 10 साल काम करने वाले हो, तो साल का 1 करोड़ एग्जाम्पल। तो अगर 1 करोड़ कमाना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 12 मंथ्स, एंड पर मंथ कितना कमा रहे हो, यू हैव टू डिवाइड इट बाय से 25 to 26 डेज, रफली जितना महीने का काम करते हो उतना आपको हर दिन कमाना है। तो हर दिन कमाने के लिए जितने आपके पास पेशेंट है, आपको उतना प्रॉफिट हर एक पेशेंट से बनाना पड़ेगा। तो इफ यू हैव टू मेक से 3,000 पर डे, तो अगर आप 5 पेशेंट कर रहे हो तो आपको 600 प्रॉफिट। तो बेसिकली आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वो निकलना चाहिए, ओवरहेड कॉस्ट है वो निकलना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट है वो निकलना चाहिए, सब कॉस्ट निकालो और उसके ऊपर 600 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। मैक्सिमम देयर नो लिमिट बट मिनिमम। So this is how his calculation is. So if anyone has any questions related to कि कैसा ये charges decide करते हैं, क्या है, आप comment section में डालिए। डॉक्टर रवि will be joining us back once he gets into his other device 5 मिनट में। हम लोग उनसे ज़्यादा डिटेल में ये कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है डॉक्टर सागर, मैं अच्छा मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, दिस फ्रॉम फीमेल डेंटिस्ट, और मैं एक अच्छे एरिया में सेटअप कर रही हूँ, और अदर डेंटिस्ट जो पहले से हैं उधर, वो लोग उतना अच्छा मटेरियल यूज नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, और इसीलिए उनके चार्जेस थोड़े कम हैं। तो आपको क्या लगता है, स्टार्टिंग में ही मुझे मेरे चार्जेस उनसे ज़्यादा रखने चाहिए, या मुझे स्टार्टिंग में इक्वल रखना चाहिए फिर बढ़ाना चाहिए, या मैं अपना मटेरियल क्वालिटी कम करूँ? आपका क्या ओपिनियन? सर पहले तो मेरी भी बैटरी जाने वाली है, तो मैं फटाफट से इसका आंसर कर दूं, क्योंकि मेरा घर दूर है, मेरे को डिवाइस की दिक्कत होगी, आई विल जस्ट रन अराउंड। बट अबाउट दिस, होता है सर ऐसा कि मटेरियल को यूज नहीं करना चाह रहा है, अच्छा ऐसा होता है। बट ये आप एक्सप्लेनेशन जो देंगे, आपने जब भी कोई आएगा और आपसे कोई बार्गेनिंग करता है, कुछ भी करता है, तो आप एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते कि आपका मटेरियल बेस्ट है, उनका मटेरियल खराब है, ये तो नहीं बोल सकते आप, ठीक है। बट ये हो सकता है कि यस, कि आप चार्जेस को थोड़ा सा ऊपर करके रखें। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मार्जिन इतना ज्यादा है ना,
मार्जिन इतना ज्यादा है टू प्ले अराउंड कि अगर कॉम्पोजिट हम यूज कर रहे हैं और समझ लीजिए आप जो कॉम्पोजिट यूज कर रहे हैं वो 1000 की एक्सचेंज पड़ रही है और जो दूसरा यूज कर रहा है उसकी 1500 की एक्सचेंज पड़ रही है, तो तो भी मार्जिन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और मटेरियल में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आप 4000 की यूज कर रहे हैं और वो 1500 का यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल पे ऑब्वियसली चीजें चेंज होती हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होता है, बट सबसे ज्यादा जो चेंज होता है वो आपके स्किल से चेंज होता है। जैसे कि एंडो बेस मैं बता रहा हूँ अभी अपने दिमाग से कि अगर मैं अगर रूट कर रहा हूँ और मैं चार्ज कर रहा हूँ 5 से 6 हज़ार रुपये, ठीक है, और सामने वाला अगर 4000 रुपये चार्ज कर रहा है और उसका हाइपो अच्छा नहीं है, मेरा हाइपो समझ लीजिए अच्छा भी है, मगर मुझे उसे यूज करना आता है, मुझे यूज नहीं करना आता, तो रिजल्ट तो नहीं आएंगे ना। यूज कैसे करते हैं हाइपो को, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, या फाइल सिस्टम कैसे यूज करना है, या एपेक्स कैसे लेना है जिससे पेशेंट को परेशानी ना हो और जल्दी काम हो, तो आपका मेरे हिसाब से मटेरियल से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्किल से आप मटेरियल का यूज करना जान पाते हैं, उसको उसका बेस्ट यूज देना बना पाते हैं। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो 3M या अच्छे अच्छे कंपोनेंट यूज करेंगे पर उतने अच्छे से उनकी रजिस्ट्रेशन में दिखते नहीं है, और डॉक्टर रवि अगर कोई भी कंपोनेंट यूज करेंगे आई एम श्योर कि वो जब बिल्डअप करेंगे तो वो अलग होगा। मैं जब बनाता हूँ दांत इतना खराब बनता है कि बस अर्थ नहीं है, और जब मेरी वाइफ बनाती है तो इतना अच्छा सुंदर बनता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आर्ट वो यूज कर रही हूँ। और जब मैं रूट कनाल करता हूँ तो बहुत बढ़िया करता हूँ, और जब वो करती है तो डिफरेंट है। तो अपना अपना स्किल पे भी बात है, तो आप पहले तो अपने स्किल्स को इतना डेवलप करें कि जिस भी चीज में आप कर रहे हैं उसमें मटेरियल को यूज करना जान लें, और बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रखे चार्जेस में। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल 5000 रुपये फिलिंग के ले रहे हैं और दूसरा 1500-2000 रुपये ले रहे हैं। यस, वो आपका ऑब्वियसली डिसाइड नहीं करने वाले चार्जेस, बट आप भी ये चीज ध्यान रखें कि आपके स्किल के हिसाब से वो चार्जेस जस्टिफाइड है तो लीजिए, पर अगर जस्टिफाइड नहीं लग रहा है आपको तो आप उससे स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे करके मटेरियल कॉस्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो ज्यादा आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मटेरियल अच्छा यूज करते हैं, मुझे तो ये लगता है। मुझे नहीं पसंद कि मेरे क्लिनिक में ना कोई भी चीज मिक्स हो, तो मेरे क्लिनिक में सारी चीजें सिरिंज फॉर्म में है। इसलिए नहीं कि मैं उसका कॉस्ट ज्यादा लूंगा, इसलिए कि मैं आराम से, मेरा असिस्टेंट काम करेगा और मुझे आराम से क्लिनिक में मैं काम कर पाऊंगा। तो कई लोग आरबीजी भी इसलिए नहीं लेते कि अरे वो सर एक्सरे वाले की फिल्म की चार्जेस कम लेंगे, उसमें पेशेंट से ज्यादा लेंगे तो परेशानी होगी। मैं नहीं भी लूंगा तो भी मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से सोचना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन था कि शुड आई वी इंक्रीज द चार्जेस रेगुलरली या सडनली बढ़ाना चाहिए। ये दोनों का आंसर मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बोल दूंगा कि एवरी ईयर इंक्रीज कंपल्सरी। आपका बाहर का रेट बढ़ता है, आपका दूध बढ़ता है, ब्रेड बढ़ता है, एवरीथिंग। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज तो होना ही चाहिए, प्लस स्किल इंक्रीज होना चाहिए। सो योर एवरी ईयर चार्जेस हैज टू बी इन्फ्लेशन प्लस योर इंक्रीज ऑफ स्किल। तो ये मैंने आंसर कर दिया है। I know both you like agree. I know them personally. So, next question. Financial mistakes जो डेंटिस्ट रेगुलरली करते हैं, डॉक्टर रवि। यस, इसमें तो मैं बड़ा said, boy, let's get straight to the first important one. अगेन आई एम रियली सॉरी। मेरी क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं पहुंचा हूँ तो माई डिवाइस का बैटरी इज रनिंग शॉर्ट। आई होप मैं ये आंसर कंप्लीट कर पाऊँ। 15% मेरी बैटरी है, आई होप मैं ये आंसर कर पाऊँ। एनीवेज, आई थिंक कि बहुत सारी मिस्टेक्स हम डेंटिस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक ही मिस्टेक करते हैं, बिकॉज फाइनेंसेस के बारे में हमें कभी सिखाया नहीं गया है। हमारी ये फैमिली में पैसों के बारे में बात करना एक टेबू माना जाता है। बच्चों से पैसे की बात करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। स्कूल में हमें सिखाया नहीं गया। इंटीग्रेशन और परमिटेशन कॉम्बिनेशन ये सब सिखाया गया, बट उसका कोई यूज नहीं है। डेंटल कॉलेज में हमें सिखाया नहीं गया, ऑब्जर्वेशनशिप में सिखाया नहीं गया, तो हमने इसके बारे में सीखा नहीं है। दैट्स द रीजन इसके लिए हम फाइनेंसेस में लैक कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि हमें हमारा फाइनेंशियल गोल ही नहीं पता है। फाइनेंशियल गोल क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे ये गोल की क्या बात है, हम लोग तो कमाना ही जब आराम से शुरू करते हैं, और जब इतनी दिनों के बाद या इतने सालों के बाद पैसे आते हैं तो अब वो पैसे को एंजॉय करेंगे या फाइनेंशियल गोल बनाएंगे? वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सेकंड सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो हम मिस्टेक करते हैं कि हम अपना वर्थ जानते ही नहीं है, तो हम अपना वर्थ चार्ज ही नहीं करते। थर्ड थिंग हम मिस्टेक में ये करते हैं कि हमें जब हम अपना वर्थ चार्ज करने भी लगते हैं तो भी हम उसके बावजूद भी हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते। एज डॉक्टर सतीश से हम अपने हर साल चार्ज नहीं बढ़ाते। अगर हम अपना चार्ज नहीं बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन जो कि 10% अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% पर ईयर बढ़ता है,
वो हमारे सारे हार्ड वर्क के जो जमा किए गए पैसे हैं वो खा जाएगा। तो हम अपने चार्जेस को रिवाइज नहीं करते। फोर्थ थिंग हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्लिनिक में हर साल एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज होते हैं। हम हमारे जो वेस्ट डिस्पोजेबल है उसके लिए हम पैसा भरते हैं, हम अपनी एसी को सर्विस कराते हैं, हम चेयर को सर्विस कराते हैं, हम फेमडेन जाते हैं, वहाँ से मटेरियल्स लेके आते हैं, हमारे स्टाफ की सैलरी पड़ती है, हम एंडो मोटर खरीदते हैं, हम नए गैजेट्स खरीदते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे पैसे आते कहाँ से। हम वर्कशॉप्स तक अटेंड करते हैं, बट यू नो व्हाट, ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं? ये सारे पैसे आपके जेब से आते हैं, आपके प्रॉफिट में से आप भरते हो। और आपने कभी रियलाइज नहीं किया कि ये जो सारी आपकी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, नया गैजेट, जो भी आप एजेंट को ब्रोकरेज देते हो, जो इंश्योरेंसेस आप ले रहे हो, व्हेन आई से इंश्योरेंसेस, आपका प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस जो कि 100 में से शायद 95 प्लस लोगों ने नहीं लिया होगा, और आप जो वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, ये सारी चीजों का आप साल में आपको टोटल करना चाहिए और उसको पर मंथ में और पर डे में डिवाइड करके वो भी आपको अपने पेशेंट के चार्जेस में इंक्लूड करना चाहिए। जिस दिन आप ये करने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए, और आप ऑलरेडी जो चार्ज कर रहे हो वो आप बहुत कम चार्ज कर रहे हो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो और आप अपनी चार्जेस तब रियलाइज करोगे तो आपको लगेगा आप ट्रस्ट में काम कर रहे हो, क्योंकि ये सारी पैसे हमारे जेब से जाते हैं। तो ये भी हमने कभी इवेल्युएट नहीं किया, मतलब हमने कॉस्टिंग नहीं की। उसके बाद मैं देखता हूँ कि हम डेंटिस्ट जो है, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम क्लिनिक में या हम घर में जब भी हम पैसे खर्च करते हैं तो हमारा कोई बजट नहीं होता है, हम कोई बजटिंग नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ डेंटिस्ट दे आर गिल्टी ऑफ नॉट स्टिकिंग टू अ बजट या नॉट फॉर्मिंग अ बजट। अब अगर बचा कुचा पैसा ये सब करने के बाद भी अगर 2-4 महीने में एक आध बार पैसा बच जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से यहाँ कहना चाहूंगा कि सेविंग इज अ ट्रैप। पैसे सेव करना इज अ ट्रैप। मेरी डिक्शनरी में तो सेविंग लिखा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे पास पहले पैसा आता है और वो सेव होता ही नहीं, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, और इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा बचता है उसमें मैं अपना खर्चा चलाता हूँ। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, दैट शुड बी योर, वो आपका प्लान में, एग्जीक्यूशन में आ जाना चाहिए। तो लोग सेव ही नहीं करते, सेव करेंगे कहाँ से? बिकॉज बजट नहीं करते, बजट बनेगा कहाँ से? तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। इसके अलावा आई थिंक डेंटिस्ट लोगों को इंश्योरेंसेस भी इनफ नहीं है। किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ये दोनों इंश्योरेंस अगर किसी ने ले भी लिया है तो उनके पास इंडेमनिटी इंश्योरेंस नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, या बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन में हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकते। बट आपको लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में हो क्या नहीं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल जाने के चांसेस ज्यादा है या आपके इस दुनिया से जाने के चांसेस ज्यादा है। तो आपका आंसर आएगा आपको हॉस्पिटल जाने के चांसेस ज्यादा है। तो भाई डियर, पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले भी लिए हो तो क्या वो ऑप्टिमम है, क्या वो एडिक्वेट है, वो भी आपको समझना है। तो एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, देन आप लाइफ इंश्योरेंस लो, उसके बाद आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लो, उसके बाद आप इंडेमनिटी इंश्योरेंस लो। यस, ये सारे इंश्योरेंसेस आपको लेने हैं। अब आप सोचोगे यार इतने इंश्योरेंसेस ये बंदा ले रहा है, इतने पैसे आते कहाँ से? यस, यहीं पे आपको पता चलेगा कि यू आर नॉट चार्जिंग योर वर्थ, बिकॉज ये इंश्योरेंसेस के पैसे मैं कहाँ से भरूंगा? अपने प्रॉफिट में से। और वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? आपके क्लिनिक से। और क्लिनिक में तो आप 50 चार्ज ही करते हो, तो उसमें से पैसे निकलेंगे कहाँ से? एंड देन ये सब के ऊपर एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा फटाफट, कि ये सब हम कर लेते हैं, हमको कमाना बहुत पसंद है, हमको हाई चार्ज करना पसंद है, हमको ये पसंद है कि हम बस मुंह से पैसे बोले और पेशेंट हमें पटाख से बिना ऑब्जेक्शन के पैसे दे दे, यू नो। लेकिन हम कभी अपने आप को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट नहीं करते। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए अपने आप को अपग्रेड, अपने आप को कोई वर्कशॉप में एनरोल किया होगा कभी? शायद ही कोई मिलेगा। सो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज इन्वेस्ट ऑन गेटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन फर्स्ट थिंग। उसके बाद अब ये बाकी सारी जो मिस्टेक्स है उसको आप धीरे धीरे इंश्योरेंसेस लेते हुए, धीरे धीरे यू नो कि बजट बनाते हुए, इन्वेस्ट करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक आई हैव अ लॉट टू से, बट आई विल सम अप बाय सेइंग दैट इफ यू फेल टू प्लान, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप अभी भी अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं बना रहे हो तो आप फेल कर रहे हो। और एक चीज और ध्यान रखना है कि आप प्लान बनाओगे किस चीज का, तो पहले आपको गोल बनाना होगा। सो मेक योर फाइनेंशियल गोल, मेक योर फाइनेंशियल प्लान टू अचीव दैट गोल, क्रिएट अ डेडलाइन एंड स्टार्ट चार्जिंग योर वर्थ। बिकॉज अभी तक क्या होता था, मेरा मटेरियल का चार्ज
मेरा कैब का चार्ज 1,000 रुपए है, तो इंटू 3x मेरा चार्ज हो गया। अभी ये लाइव सेशन के बाद या फिर कभी आप अगर आप कोई फाइनेंशियल फाइनेंशियल नॉलेज अपग्रेड करने वाले अगर आप वर्कशॉप अटेंड करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है इंटू 10x अगर आप चार्ज करते हो, तब जाके आपकी लाइफ आसान होगी। यस, आप सबने सही सुना है, जो भी आपका फिक्स चार्ज होगा इंटू 3x नहीं होना चाहिए, इंटू 10x होना चाहिए। बिकॉज कई बार हम बहुत सारी चीजें निग्लेक्ट कर जाते हैं। तो आई थिंक आई विल सम अप बाय सेइंग दिस। बाकी डॉक्टर सागर एंड डॉक्टर सतीश आप लोग ओके। एक क्वेश्चन उसने पूछा था, डॉक्टर चक्रेश ने, सागर ने बोला था कि Zirconia और PFM वो सेम चार्ज कर रहा है। बेसिकली he didn't mean he's charging the same amount for Zirconia and PFM. He said स्किल का चार्ज अलग है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपका PFM से 1000 रुपीज का है और अगर आपका Zirconia आप कर रहे हो तो वो 2000 का है। स्किल चार्जेस फॉर एग्जाम्पल से 5000 और 6000 योर स्किल चार्ज, उसके ऊपर वो 1000 या 2000 ऐड होगा। So he's not charging the same amount for a PFM cap or a Zirconia cap. Skill wala charge, Dr. Sagar is keeping same, and then he's adding separate of PFM and Zirconia. Is free dental cap necessary, Dr. Ravi? आई डोंट थिंक, मुझे लगता है देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। आप पंडित के पास जाते हो या फिर आप प्रसाद लेते हो, तो भी आप दक्षिणा के तौर पे कुछ डालते हो। कहने का मतलब फ्री की चीजें लोग वैल्यू नहीं करते, फ्री में कोई आपके पास आएगा ही क्यों, तो आई थिंक हर चीज का एक वैल्यू होना चाहिए। भले आप 50 रुपए चार्ज करो, लेकिन चार्ज करो। जिस दिन अभी इतने के बाद भी अगर आप रियलाइज नहीं करते हो कि आपको चार्ज करना चाहिए, तो फिर आप बहुत पीछे हो। आई थिंक यू शुड चार्ज, डेफिनेटली डे 1 से आप चार्ज कीजिए, भले थोड़ा, लेकिन चार्ज कीजिए। फ्री का आदत मत डालिए। शॉर्ट एंड स्वीट। Understood. There is one question, Dr. Mega. I am still doing a job. I'm a fresher. Should I start investing? Day 1, yes. The day you start earning is the day you should start investing. Simple and crisp. 100% Dr. Mega, I agree with Dr. Ravi. You should go. There are free lectures कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं, FD क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, SIP क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, गोल्ड बॉन्ड्स। एटलीस्ट स्पेंड टाइम, जितना टाइम आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हो, टेक सम टाइम आउट ऑफ दैट, से 45 minutes to 1 hour when you are starting your career. Understand what ITR is, IT कैसे फाइल होता है, क्यों फाइल होता है, कितने अमाउंट तक आप फाइल करके जीरो कर सकते हो उसको। यूर अ डॉक्टर, अगर आपने 10 लाख भी कमाया, आपको जीरो टैक्स भरना पड़ता है। यू कैन डायरेक्टली शो 5 lakhs as expenses. Understand filing of IT, loans, and this is not very complicated. आपने 5 साल पढ़ाई किया है, ग्रेटेस्ट बन गए, ठीक है। आप आराम से बेसिक नॉलेज फाइनेंसेस का पढ़ सकते हो by listening to people and speakers. You have Dr. Ravi out there who is always helpful. You can attend one of the sessions and learn the investment कैसे होता है। So day 1 for any fresher who's watching this, start investing. मैं पैसे कमाऊंगा, फिर इन्वेस्ट करूंगा, बचाऊंगा, फिर इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे नहीं होता है। Like how Dr. Ravi said, मैं पहले पैसे कमाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, बचे हुए से मैं खर्चा करूंगा। So that is something you should take from Dr. Ravi out here. I would like to add one. Yes, tell me. Yeah. I think financial knowledge आपको डे 1 से स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें मैंने 2-3 चीजें तो ऐड ही नहीं की है। कंटिंजेंसी फंड नाम का कुछ फंड होता है। कंटिंजेंसी फंड ये कहता है कि जब आपका क्लिनिक ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या फिर भगवान न करे कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप हॉस्पिटल में नहीं हो, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं आएगा। लेकिन आप समझो आपके हाथ में चोट लग गई है एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क, स्टिल आपका रेंट चालू रहेगा। कोविड जैसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपके मीटर्स चालू होते हैं, तो आपके पास कंटिजेंसी फंड जैसा कुछ फंड्स भी होना चाहिए। ये भी हम डेंटिस्ट नहीं फॉलो करते। एंड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, हम रिटायरमेंट प्लान नहीं करते। अगेन, रिटायरमेंट हमारी से पहले वाली जनरेशन, जो हमारे फादर्स की जनरेशन थी, एक जनरेशन पहले, उनके लिए बहुत आसान था। अभी तक हमारी एक जनरेशन ऊपर अगर हम देखेंगे, तो लोगों की रिटायरमेंट की ज़्यादा चिंता नहीं होती थी, बिकॉज गांव में या सिटीज में उनका कुछ ना कुछ हुआ करता था। बट अब नाउ ऑन एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सिटीज। तो हमें रिटायरमेंट की, इट्स हाई टाइम फ्रॉम आवर जनरेशन ऑनवर्ड्स दैट हमें अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। हम रिटायरमेंट के बारे में कब सोचेंगे? जब हम रिटायर होने जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। एंड जस्ट टू गाइड यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनीथिंग ओवर हियर। मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर आई यूज्ड टू टेक सेशंस, जो कि मैं 8 से 9 घंटे का एक सेशन लेता था।
अब लास्ट 1.5 ईयर या 1 ईयर से मैंने वो कंडक्ट नहीं किया है, बट अगर कभी कोई इंटरेस्टेड रहेगा, आई थिंक डॉक्टर सतीश एंड डॉक्टर सागर हम सब मिल के आई मीन बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम ये सेशन अगर लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम Absolutely. Yes. So if anyone is interested, you can give us the message. One more question. Sir, should I open a clinic in city where there is competition or a tehsil and taluka जहाँ पे competition slightly less? मैं तो आंसर कर देता हूँ क्योंकि मेरी बैटरी बहुत डाउन है, कभी भी ऑफ हो जाएगा। कंपटीशन तो आपको हर जगह मिलेगा दोस्त, मतलब ये तो आप भूल ही जाओ कि आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। तहसील तालुका हो या सिटी हो या कहीं भी हो, आप कंपटीशन से नहीं भाग सकते। इनफैक्ट आपका कंपटीशन आपके साथ होना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपको आपका वर्थ पता चल जाएगा, आपके सपनों का प्राइस मिल जाएगा, आप अपने सपनों के लिए काम करने लगोगे, ना कि कंपटीशन के लिए। जैसे मुझे से फॉर एग्जांपल आज 20,000 रुपए घर पे चाहिए फॉर एनी रीजन, और मैं नहीं लेके जाऊंगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, तो मुझे कैसे भी करके 20,000 रुपए सही तरीके से कमाने ही होंगे, यू नो। सो आई थिंक एक चीज हम डेंटिस्ट भूल जाते हैं, हम अपने चार्ज बढ़ाना चाहते हैं बट हम उसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, यू नो। तो वैल्यू एडिशन आपको सीखना चाहिए। जिस दिन आप वैल्यू एडिशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिस को टैकल करना सीख जाओगे, आप हाई चार्ज करने लगोगे। हाई चार्ज जो आप कर रहे हो उसका जस्टिफिकेशन आप और आपकी टीम और आपका काम देना चाहिए। जिस दिन ये होने लगेगा, आप अपने आप में एक ब्रांड बन जाओगे। लोग आपके एब्सेंस में, आपके पीठ पीछे आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे और आपको विदाउट हेजिटेशन वो आपको पैसे देना स्टार्ट कर देंगे। सो अपग्रेड योरसेल्फ डेली 1% बढ़ाने के, यू नो, बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस। Understood. I think Sagar का नेट गया है. I don't think he will be joining us for further questions. So I think आज के लिए wrap up कर देते हैं session. Dr. Ravi, thank you for taking your time and joining us. Thank you, Dr. Sagar, our CEO. And we will have to take a part 2 of this where we talk in depth about certain specific items. As बहुत general talk था about finances, we can talk further about it. If you like this video, do not forget to check out these two videos. I'm sure you'll enjoy them.